Good morning. Welcome to the today's webinar on the topic professional opportunities in IPR. Today we have with us past regional council member of WIRC, CA Purushottam Khandelwalji. I thank you, CA Purushottam Khandelwalji, for accepting our invitation for sharing his knowledge and experience. I also thank you, our RCM, Manish Gadia ji. Actually, we just discussed that we want to keep the topic on IPR, and he suggested us the good speaker. I now request our core group member, CA Nidhi Lalpuria, to introduce CA Purushottam Khandelwal ji. Thank you, Seema ma'am, for the opportunity. It is a pleasure to introduce CA Purushottam Khandelwal ji. He is a member of ICAI, fellow member of ICAI, and is a law graduate from Gujarat University, Ahmedabad. He is a senior partner of Purushottam Khandelwal and Company, having 25 years of post-qualification experience in the field of audit, direct tax, and indirect tax, and IPR. He has had some key positions at ICAI. He's been the secretary of WIRC of ICAI in 1819, member of Western Region Council for the term 16 to 19. He's been the chairman of Ahmedabad in 13-14, wherein the branch where he was awarded the best branch. He was the chairman of the Ahmedabad branch of WIRC in 13-14. That time it was allotted the best speaker, best region. So there are many feathers in his cap. That includes secretary, chairman of Ahmedabad branch of Vikasa. He is now serving as the assistant government for Rotary Club, District 3054. With that, I welcome you, sir, to the JB Nagar CP Study Circle, and please request you to please start your session. Good morning. Convener of the JB Nagar Study Circle, Seema Mehta ji. Deputy Convener, Krishna Kumar ji. My dear friend and regional council member, always cooperative, good human being, Manish Gadia ji. Nidhi Lalpuria ji, and the member of JB Nagar Study Circle. First of all, I thanks to the Manish Gadia ji for giving an opportunity to share my thoughts on IPR at JB Nagar Study Circle. Friends, as you know, in the era of globalization, there is a huge importance of the intellectual property right. Before discussing the IPR right, I will elaborate some case laws which will better to understand the IPR. In 2008, Tata acquired Jaguar Land Rover brand from Ford Motors in year 2008 with a huge costing $2.3 billion. And when the Ford Motor was incurring a huge losses, and Ratan Tata acquired this brand from the Ford Motor, and after acquiring this brand, they've incurred a profit of $3,400 billion. And another, in 2018, Walmart acquired a Flipkart. So Walmart, you know, the retail chain business in the world, acquired the Flipkarts to enter into to defeat the Amazon. Both Amazon and the Walmart both are the retail chain business. And so the Walmart acquired with amount of $16 billion. And another food industry, Zomato, acquired the Uber Eats India with 2,492 crores rupees. Ola acquired the Taxi for Sure. Apart from this food chain, the South Korea's Lotte Confectionery Company acquired a Hammer ice cream brand from Gujarat, having cost of 2,020 crore, where only 80 crore was the cost of machinery and the equipments, and rest money was the payments toward the trademarks, the goodwill. Zydus recently acquired the chocolate brands of the Hertz brands. In another Ban India of the Rajkot company, separated this brand Sesa Oil from this all brands and create a new company, Sesa Care Private Limited, where the 1,250 crore invested by the True North PE. So you know there is a huge commercial deal where the trademarks have been sold to each other and merger and acquisition. So here is the professional come into pictures, where the chartered accountants
having a huge involvement in this commercial deal. So first I will talk to the members that do you think it is without involvement of chartered accountant this deal can be possible? So the chartered accountant must know how these trademarks or IPR rights are registered, maintained for corporates. So first I will explain what is the proportion opportunity for a chartered accountant in the IPR. So first of all, the brand management. Once a corporate acquires the brand, but they must a recurring natures that every time, every day with a 7 days registry of trademark come with the journal where they publish the new trademark comes for the registration. So जो भी trademark registration के लिए आ रहे हैं वो किसी भी corporate के काम नाम का copy तो नहीं कर रहे हैं. अगर copy कर रहे हैं तो it's our responsibility to inform our client or our corporates. We can take annual contact from the corporate that and we will inform you if somebody else come into picture for registration of same trademark. So we can provide these services. We can also provide them the how to acquire the IPR rights on your brand, patent, trademark and copyrights. So we can helping them into acquiring their right. Brand developments, as you know, now the chartered accountant is a total business solution provider, and we are the partner in the nation building. And recently, the government is come with the IPR national policy, where they cast the responsibility to the professional and even the request to the professional to help your client for the development of brands and how they can develop the brands. They can assist you. Startup and IPR. So recently, you know, the IPR is the most important for the startup. The startup, there is no assets based company, but they come with an innovative idea. Suppose Uber, Ola, Zomato, all these companies are having a network. So Uber and Ola is booking car and or the taxi from others, and they are providing the software and the platform where the owner of the taxi holder comes with the softwares, and they will give the taxi to Uber and Ola, and Uber and Ola charge their commission and return their payment to the party. So all these are the huge client base and customer base. So they will create a customer. So our professional responsibility and professional opportunity how to register the IPR for the startup companies, provide them the best solution. There is an use government grants and the facilities for the startup and IPR. They are even though charging a half fee for the registration of IPR for the startup companies. Assistance in the litigation matter. So we can provide our professional can provide assistance in the litigation matter where litigation number of corporates having their own brand, own IPR right, but in the market there are fair chances of doing a duplicate business, unfair trade practice. So you can brought to the notice of management to how you can have a litigation and stop them to do the unfair trade practice. Advice to your client on IPR matters. IPR matter is an use matters. One company where I am providing the annual brand services having a 500 brands. So in the pharma company, if your client is a pharma company, there is a fair chances because the pharma company is always acquiring right on the IPR. One another is a rectification of name under section 16 of the Companies Act 2013. Now the government says the trade name or a registered brand name of any company, you cannot register this name as your corporate house. Previously, what was happened? Suppose you are having your own registered trademark and brand. There was no communication and link with the Minister of Commerce and Industries and Minister of Corporate Affairs. So Minister of Corporate MCA approved the name for company, and they were approving the name of corporate where this name was a trademark of other companies. So now they've stopped this, and every time whenever you apply for the acquiring new name, they will check the name on the trademark registry. If the trademark if this is the
trademark of someone else corporates, they will not approve name for that. Even under section 16 of the Companies Act, where the corporate acquire the name of their corporate if this was a trademark of someone else. So now the owner of trademark holder can ask to central governments to remove this name, even though central government is so to remove this name, or the person agree whose name was used for the corporate name, so they can ask to the regional directors or that which instructs to that company to remove this name. GST and brand registration. So there are in the food product, there is no GST for unregistered brand, and the registered brand having a certain GST. The registered trademark and name approval ROC already discussed. Now it comes to the IPR. What is the intellectual property right? Till अभी तक अपन सब यही जानते थे कि राइट है वो फिजिकल एसेट्स पे ही है, फिजिकल एसेट्स है उस पर राइट है, वो हमारे पोजीशन में है क्योंकि एक जगह है, फिजिकल एसेट्स है तो हमारे राइट है, हम उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, हम इसको यूज करने का किसी को राइट दे सकते हैं. बट इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड is a right on the invisible assets, but there is an use cost of that right. So I've already starting of my lectures आपको बताया कि इस तरह के जो डील हुए हैं, कॉमर्शियल डील हुए हैं, जहां पे करोड़ों रुपए में आपने वो डील किए हैं ब्रांड के. तो ये आप अगर अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर सलाह नहीं देंगे कि ये कॉमर्शियल डील का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसका राइट कैसे दिया जाता है, किसको किस तरह से बेचा है, इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, और इस पे टैक्सेशन मैटर्स भी आएगा आपको, वैल्यूएशन मैटर, टैक्सेशन मैटर, और ये सब कुछ मैटर आपको आएगा. तो मैं आपको थोड़ा इलेबोरेटली बताऊंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म है वो वाइड टर्म है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म इज एन वाइड टर्म. उसके अंदर आपको ट्रेडमार्क भी आएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी आएगा, पेटेंट भी आएगा, कॉपीराइट भी आएगा और डिजाइन भी आएगा. सो फर्स्ट ऑल ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या है, कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, कहां पर रजिस्टर्ड किया जाता है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा. कि ट्रेडमार्क किसका हो सकता है. ट्रेडमार्क किसी नाम का हो सकता है, किसी स्लोगन का हो सकता है, लोगो का हो सकता है, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन का हो सकता है. ये जो भी नाम, स्लोगन, लोगो, इन सब का आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं. अब ट्रेडमार्क कौन करा सकता है? ट्रेडमार्क कोई भी बिजनेस प्रोप्राइटर करा सकता है, पार्टनरशिप करा सकता है, एलएलपी करा सकती है, ट्रस्ट करवा सकता है. और नॉट ओनली दोज हु आर प्रोवाइडिंग दी मैन्युफैक्चरिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज, बट इवन दो सर्विस प्रोवाइडर कैन आल्सो रजिस्टर देयर ट्रेड सर्विस मार्क नेम. जैसे बिग फोर है, डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, ऑल ये सब जो बिग सर्विस प्रोवाइडर है, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब, बार, वो सब के सब नाम रजिस्टर करा सकते हैं क्योंकि वो उनके नाम से लोग वहां पे आते हैं. और आप किसी भी जैसे टाटा ग्रुप के होटल में जाएंगे, ताज में जाएंगे, तो आप ताज के ब्रांड के नाम से वहां पे आप जाएंगे. तो वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका नाम है वो सब करवा सकते हैं. तो देयर आर 45 टोटल क्लासेस है ट्रेडमार्क में. क्लास 1 to 45 ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन है जिसको नाइस क्लासिफिकेशन बोलते हैं. ये ट्रीटी नाइस में हुई थी, इसी को नाइस के नाम से जाता है. आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे तो सबके लिए क्लास यही रहेंगे. इंटरनेशनल क्लास और इंडियन क्लास में हार्मोनी है. हम जहां इंडिया में भी जो नाम क्लास यूज करते हैं वही इंटरनेशनल क्लास भी है. सो क्लास 1 to क्लास 34 प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करते हैं. आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है, आपको कौन सी क्लास में आता है, वहां पे रजिस्टर करता है. और क्लास 35 to 45 सर्विस को डिफाइन करते हैं कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो वहां पे आएगा. लेकिन क्लास 35 एक वाइड है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो उन सबको आपको क्लास 35 में कराना चाहिए. जैसे एक ही शोरूम है, मल्टी शोरूम है, जैसे बिग बाजार है, वहां पे मल्टी प्रोडक्ट आप डील करते हैं, मल्टी कमोडिटी सेल करते हैं, और आपको सिर्फ उसके बाहर जो नाम रखा हुआ है वॉलमार्ट, ये जैसे बिग बाजार है या स्टार बाजार है, वहां जाके तो वो स्टार बाजार और बिग बाजार वो जो भी आएगा वो क्लास 35 में आएगा. बराबर. अब कैसे क्या करने का कि कौन सा मार्क रजिस्टर किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है. तो सबसे पहले आपका ट्रेडमार्क देयर शुड बी डिस्टिंक्टिवली कैपेबल होना चाहिए. आपका नाम
एक ट्रेडमार्क दूसरे ट्रेडमार्क से डिफरेंशिएट होना है। जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम खंडेलवाल है, वैसे मनीष भाई का नाम मनीष भाई गाड़िया है तो लोग समझने वाले मनीष भाई अलग है, पुरुषोत्तम खंडेलवाल अलग अलग पर्सन है। अगर आपका ट्रेडमार्क अगर इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो वो ट्रेडमार्क सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड नहीं होगा, बराबर। दूसरा, जेनेटिक नाम रजिस्टर नहीं होंगे। अगर जैसे मिर्ची है या चिली है, तो चिली के लिए चिली प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं होगा, हल्दी के लिए हल्दी नहीं होगा, बॉल पेन के लिए बॉल पेन नहीं होगा, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल के लिए मोबाइल नहीं होगा। आपको क्रॉस नाम देना पड़ेगा, आपको आपके प्रोडक्ट का ऐसा नाम देना पड़ेगा जो उसको जेनेटिक वर्ड से जोड़ता नहीं है, क्योंकि जेनेटिक वर्ड पे किसी का राइट नहीं है, वो उसके बेसिक गुण्स को बताता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो आप जेनेटिक नाम को रजिस्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर आपका दूसरा, आप किसी भी एक्सिस्टिंग ट्रेडमार्क है या वेल नोन ट्रेडमार्क है, ये वेल नोन ट्रेडमार्क का कंसेप्ट ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में लाया गया, उससे पहले वेल नोन ट्रेडमार्क का कंसेप्ट नहीं था। जैसे टाटा, बिरला, जो लोग समझते हैं रिलायंस, ये बड़े ब्रांड है जिसका आप इमिटेशन करते हैं, उससे कुछ मिलता जुलता नाम रख के नया ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, तो सरकार आपको नहीं देगी। सरकार ने इनकी वेबसाइट ipindia.nic.in पे ऑलरेडी ये वेल नोन ट्रेडमार्क की लिस्ट रखी हुई है, आप वो लिस्ट को देख सकते हैं और आपको वो वेल नोन ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेंगे, बराबर। सो आपको ये वेल नोन ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, आपको ट्रेडमार्क कराने से पहले आपको ipindia.nic करके वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें ऊपर ही ऊपर ट्रेडमार्क दिया हो, ट्रेडमार्क पे जाके आपको सर्च करना है। आपको जो नाम आपको रखना है, आपको अपने क्लाइंट्स के नाम मंगवा लीजिए, उनसे पूछिए कि आपको किस प्रोडक्ट के लिए करना है, क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, वो नाम आप ले लीजिए और उसको अपने जैसे आरओसी नाम में सर्च करते हैं, आपको और चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नो हाउ टू सर्च नेम इन एफसी वेबसाइट, सेम वे ipindia.nic.in करके वेबसाइट है, वहां पे ट्रेडमार्क है और ट्रेडमार्क का सर्च इंजन उन्होंने दिया हुआ है। आप वहां जाके आप नाम डालिए और क्लास डालिए, आपको कौन सी क्लास में आना है, तो आपको क्लास आपको पढ़ने का पड़ा है और क्लास की डिटेल भी आपको उसी सर्च इंजन के ऊपर दी हुई है। टोटल क्लास 1 से जो 45 है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे, आपको क्लाइंट जो बोलेगा वो उसका माइक्रो से माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट ने नाइस में दिया हुआ है, वो प्रोडक्ट आपको उस क्लास में फॉल होता है। तो आप सबसे पहले उसका क्लास नक्की कर लें, क्लास नक्की करने के बाद में आप उसको नाम को सर्च करें। अब आप सर्च करोगे तो वो बताएगा कि ये नाम आपके नाम से मिलते जुलते हैं, आप सेम नाम को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले की रेजिम में गवर्नमेंट के पास कंप्यूटराइज नहीं था। अभी नेशनल प्लेटफॉर्म में आपको इंडिया के हर ट्रेडमार्क आपको वहां दिखेगा। तो पहले जो गलती से रजिस्टर्ड हो गए वो हो गए, लेकिन अभी तो वो आपको रजिस्टर करके नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो फी भरेंगे उसका भी खर्चा होगा, तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप श्योर कर लें कि ये नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आप श्योर हो जाते हैं कि ये नाम आपको मिलेगा, तब जाके आप वहां पे क्लाइंट को बोल दीजिए कि नाम अवेलेबल है। नाम अवेलेबल है तो TMA फॉर्म होता है, जहां पे आप TMA1 फॉर्म पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी इसके लिए गवर्नमेंट क्या फी चार्ज करती है, कैसे चार्ज करती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे आप इंडिविजुअल प्रोपराइटर कर सकते हैं, पार्टनर कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकते हैं, LLP कर सकते हैं और लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं। प्रोपराइटर के लिए ये गवर्नमेंट की फी पर ट्रेडमार्क 4500 है, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के लिए 9000 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करते हो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ट्रेडमार्क की फी आपके लिए 5000 इंडिविजुअल के लिए, 10,000 पार्टनरशिप, LLP और कंपनी के लिए। लेकिन सरकार ने फिर इसके आगे एक और दिया है, अगर आपकी कंपनी MSME में रजिस्टर्ड है, अगर आपकी कंपनी छोटी है या स्टार्टअप में है, तो एंड यू हैव टू पे द 50% ऑफ फी, आपको सिर्फ 50% फी देनी पड़ेगी, बराबर। तो इससे ये आप फी नक्की हो गया, क्लाइंट नक्की हो गया, आप उनका लोगो क्लाइंट्स का ले सकते हैं और उसके बाद में आपको 4-5 डिटेल डालनी पड़ती है कि ये आपका यूज कब से है। ट्रेडमार्क में ये 2 इंपॉर्टेंट है कि आपका यूजर है या प्रपोज टू बी यूज है, अगर आप इस नाम को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या यूज करने वाले हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये देना पड़ेगा कि ये कब से यूज कर रहे हैं, और आप प्रपोज टू बी यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगर यूज कर रहे हैं तो आपका हक ज्यादा बनता है। ट्रेडमार्क एक्ट में या इस कॉमर्शियल वर्ल्ड में आपको 2 तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेस प्रोडक्ट सेल करता है राइट मिलता है, वन इन द कॉमन लॉ, ऑन अदर इन ट्रेडमार्क एक्ट 1999।
कॉमन लॉ में आपको राइट मिलेगा अगर आपके नाम का कोई दुरुपयोग कर रहा है, आपके नाम से कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, आपके नाम का यूज करके आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का कॉपी करके बेच रहा है, तो उसकी ओरिजिनल पार्टी को नुकसान हो सकता है। अगर ये बहुत बड़ा है कि अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं कराया है, भाई गलती से नहीं कराया है, लेकिन जैसे आपके फादर या फोर फादर का बिजनेस है वो चल रहा है, उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं कराया, आप नई जनरेशन है, आपको पता है कि आपको ट्रेडमार्क कराना चाहिए, बराबर, और अभी आप ट्रेडमार्क करने से पहले किसी ने आपके इस बिजनेस का कॉपी किया हुआ और वो चला रहा है, तो आपको राइट है कि आप इसको स्टॉप करवा सकते हैं इवन दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूं, माणिकचंद गुटका एंड माणिकचंद का। माणिकचंद गुटका आप सब जानते हैं, लगभग सबको मालूम है कि माणिकचंद बहुत फेमस ब्रांड थी और वो गुटखा बेचती थी, लेकिन माणिकचंद से भी पहले मालिकचंद करके गुटखा की कंपनी थी, लेकिन उसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया था। तो माणिकचंद का बिजनेस ह्यूज बिजनेस था, अच्छा खासा कॉमर्शियल जाइंट था, कमाते थे माणिकचंद गुटखा में, लेकिन उनको ऐसा एक बार ऐसा आया कि भाई मालिकचंद क्यों गुटखा बेच रहा है जबकि हम माणिकचंद बहुत बिजनेस करता है, हमको इफेक्ट हो रहा है। अब बात यह रही कि माणिकचंद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था और माणिकचंद अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था। अभी जब माणिकचंद ने उसके ऊपर केस किया, माणिकचंद के कि आप बंद कर दो, हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप हमारा अनऑथराइज प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। जब मैटर हाईकोर्ट पहुंचा तो ये डिसाइड हुआ कि माणिकचंद वाज द प्रायर यूजर, तो पहले यूज कौन करता था, अगर पहले यूज करता था तो आपको पहले हक मिलेगा, भले आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया, लेकिन आपको साबित करना पड़े, यू हैव टू प्रूव दैट आई एम द प्रायर यूजर, माय फादर वाज डूइंग दिस बिजनेस, माय ग्रैंडफादर वाज डूइंग दिस बिजनेस, माय फैमिली हैज रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ रेपुटेशन, सो वी आर द owner of here we in trademark terminology they are saying we are the proprietor of this trademark, so हमको ये ट्रेडमार्क मिलना चाहिए। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन ये आया कि माणिकचंद वो केस जीत गया और माणिकचंद को बोला कि आप ये नाम बंद कर दीजिए, और आपने देखा होगा कि माणिकचंद ने ये नाम बंद कर दिया और अभी उनका ब्रांड का नेम है RMD। सो आप अपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि आपका अगर पुराना नाम है, आपने अगर उसको रजिस्टर नहीं कराया है तो आप करवा सकते हैं। दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क, अगर किसी ने फ्रॉडेंटली ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया, जैसे यू आर दी बोनाफाइड यूजर ऑफ द ब्रांड, आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, बराबर, लेकिन सामने एक नया कोई आया, उसने आपको ट्रेडमार्क अप्लाई किया और रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि एवरी जो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करने जाता है उसका ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है, मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम आप उसको अपोज नहीं कर पाए। आप अपोज नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि आपका राइट चला गया, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्क मतलब जिसको ट्रेडमार्क ओरिजिनली मिल गया है बट लेकिन आपका राइट डिप्राइव हो रहा है, तो आप ट्रेडमार्क अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि उसका ट्रेडमार्क मार्क आपने रजिस्टर्ड कर दिया है, हमको नुकसान जा रहा है, आप उसको कैंसिल कर दो। तो लेकिन कैंसिल करने से पहले देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज, गवर्नमेंट विल चेक होल द प्रोसीजर, होल द एस्पेक्ट, एंड दे कैन पास द ऑर्डर दैट the mark which is registered by registry, trademark registry, with the not full information provided by the applicants, so they can cancel the trademark, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपको अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क का, आपने रिक्वायर्ड फी भर दी, रिक्वायर्ड फी करने के बाद में आपने ऑनलाइन ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आपने कर दी। अब क्या होगा, अब पहले तो आपने चेक किया, फिर भी जब ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है तो वो एक्सिस्टिंग डेटाबेस है, उनके पास पूरे इंडिया के डेटाबेस है कि किसके नाम पे क्या ट्रेडमार्क है, कौन सा ट्रेडमार्क है। जब वो अपने पास अवेलेबल डेटाबेस से आपका एप्लीकेंट नेम का डेटाबेस मैच करते हैं, बराबर, मल्टी इंजन उसके पास में है, आपने भले एक ही एंगल से देखा, वो स्पेलिंग मिस्टेक, मिलता जुलता नाम, रिजेंबल सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, इवन दो स्पेलिंग मिस्टेक, बराबर, देयर इज कुछ लोग स्पेलिंग में हेराफेरी करके बोलते हैं कि ये नाम अप्लाई कर दो, देयर इज एन सर्च इंजन, वहां पे वो पता लगा लेते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन सेम है, आपकी स्पेलिंग में इवन दो इधर उधर किया है लेकिन भी आपका बोलने का प्रोनाउंसिएशन सेम है, क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट आया ही इसलिए टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, दोज यूजिंग द सर्विसेज और ए प्रोडक्ट, दे मस्ट नो द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, हु इज द ओरिजिन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किसका है, उसी का हम खरीद रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकते, और दूसरे जो ट्रेडमार्क होल्डर है उनको राइट देते हैं कि आपका कोई अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेगा। तो इस तरह से ये ट्रेडमार्क कंसेप्ट इसीलिए आया कि कंज्यूमर को कंफ्यूज नहीं करना है। जब कंफ्यूजर को कंफ्यूज नहीं करना तो सरकार की जवाबदारी बढ़ जाती है कि आप जो भी मार्क रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं
तो वो किसी और का हक तो नहीं मार रहा है, किसी का राइट तो नहीं जा रहा है। ये सब देखने के बाद में वो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करते हैं। दैट एग्जामिनेशन रिपोर्ट करते हैं, उसमें ये बता देते हैं कि 3 पॉइंट्स तो कंपलसरी, सेक्शन 9, सेक्शन 11 और मिलते जुलते ट्रेडमार्क की लिस्ट। सेक्शन 9 में ये देखते हैं कि आपका ट्रेडमार्क दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकता है कि नहीं, आपके ट्रेडमार्क में ये गुण है कि नहीं कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, एक सर्विस से दूसरी सर्विस, जो प्रोवाइड जैसे केपीएमजी की सर्विस डेलोइट की सर्विस से अलग है, दोनों नाम अलग है, दोनों सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर। अगर ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी आपके ट्रेडमार्क में नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको ना बोल देंगे। दूसरा, आपके उसी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में वो नीचे एक लिस्ट देते हैं कि आपके नाम इन लोगों के ट्रेडमार्क से मिलते जुलते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है, बराबर। तो ट्रेडमार्क में क्या है, जो क्लासेस हैं वहां पे आप देखोगे तो यूज, एक ही क्लास में यूज प्रोडक्ट आते हैं, एक ही क्लास में शुगर भी आता है, एक ही क्लास में नमक भी आता है, बराबर। क्लास 30 देखोगे तो बहुत सारे, क्योंकि नमक बेचने वाला शुगर को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है इंटरेस्ट, नमक बेचने वाला शुगर को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, इवन दो अलग अलग सेम क्लास में है, लेकिन वो एक ही नाम दो के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ही क्लास में माइक्रो लेवल पे होते हुए भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोडक्ट उनके हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को कभी सरकार रजिस्टर नहीं करेगी जो एक्सिस्टिंग बिजनेस में है, फेमस ब्रांड है, नाम है, सामने जो नाम सरकार ने दिया है वो ऑलरेडी लाइव ट्रेडमार्क है, क्योंकि ट्रेडमार्क की आपको वैलिडिटी 10 ईयर तक रहती है, फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेंट टू 10 ईयर। आप 10 ईयर के बाद में आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1958 में जो एक्ट था वो 7 ईयर तक था, 7 ईयर के बाद में आपको रिन्यूअल कराना पड़ता था, सरकार ने इसको बढ़ा के 10 ईयर कर दिया। अब आप रिन्यूअल अगर उसका लाइव है, वो ट्रेडमार्क लाइव है उस एग्जामिनेशन में रिपोर्ट में, तो सरकार आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बोल सकती है कि आपका ट्रेडमार्क हम क्यों ना रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 9 को फुलफिल नहीं करता, सेक्शन 11 को फुलफिल नहीं करता और ये लोगों के मिलते जुलते नाम से है। उसके बाद में जब आपके पास ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है तब आपको स्क्रूटनी करके आपको देखना पड़ता है कि मेरा ट्रेडमार्क रियली किसी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या मेरे से मिलता जुलता है या मेरा ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है कि नहीं। उसके बाद आप कॉम्प्लायंस करते हैं, आप रिप्लाई देते हैं, वो रिप्लाई मिलने के बाद रजिस्ट्रार उसको सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं, जो मेरे ट्रेडमार्क एप्लीकेंट ने जो रिप्लाई दिया है उससे मैं सेटिस्फेक्शन हूं, and I can pass the order, that is called advertise before advertise, acceptance before the advertisement। ये भी ये बोलते हैं हमारी भाषा में कि आप कोई भी ट्रेडमार्क को रजिस्टर एक्सेप्ट करता है कि अब इसको ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर देना चाहिए। जब रजिस्टर पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तो वो एक ऑर्डर पास करता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बिफोर एडवर्टाइजमेंट। वो ऑर्डर पास करने के बाद में ट्रेडमार्क को जर्नल में भेजा जाता है कि आप ट्रेडमार्क जर्नल में उसको पब्लिश कर दें। ये जर्नल हर वीकली पब्लिश होती है, उस जर्नल में आपका ट्रेडमार्क पब्लिश कर दिया जाएगा। वो पब्लिश करने का मतलब सरकार को पूरे देश को अपॉर्चुनिटी देना है, उनसे मिलते जुलते लोगों का जिनका राइट डिप्राइव हो रहा है, दो पर्सन दोज हु आर डिप्राइविंग देयर राइट, दे कैन अपोज दिस ट्रेडमार्क विद इन 4 मंथ। अब 4 मंथ जो जर्नल है वो आपके लिए ओपन रहेगी। आपको जब जर्नल में पब्लिश होता था उसके 4 मंथ में 4 महीने तक आपको वो अपोज करना है। तो इसको हम टीएमओ बोलते हैं। टीएमओ मतलब टीएमओ में आपको एक गवर्नमेंट्स को रिक्वायर्ड फी के साथ में देना पड़ेगा कि हमारा ये ट्रेडमार्क जो आपने पब्लिश किया है उससे हमको ये नुकसान होगा, हमारे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम है, हम इतने साल से मार्केट में हैं, अगर सरकार ने ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया तो हमें नुकसान हो सकता है। ये इसको अपोजिशन कहते हैं। तो विद इन 4 मंथ आपको अपोजिशन करना पड़ता है। अगर किसी ने 4 मंथ में अपोजिशन नहीं किया है तो उस पार्टी को गवर्नमेंट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी जो 10 साल के लिए वैलिड है। अब अपोजिशन आपने कर दिया, अपोजिशन कर दिया मतलब उसका मार्क को आप सरकार ट्रेडमार्क नहीं कर रही है क्योंकि पार्टी को ऑब्जेक्शन है, पब्लिक को ऑब्जेक्शन है या और किसी कॉर्पोरेट को ऑब्जेक्शन है। जब ये सरकार के पास अपोजिशन आ जाता है, टीएमओ आ जाता है, तब ये टीएमओ सरकार उनके ओरिजिनल एप्लीकेंट्स को हैंड ओवर कर देती है कि आपके खिलाफ इन लोगों ने अपोज किया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस अपोजिशन, आप अपना बचाव करिए। देन आपको विद इन 60 days फ्रॉम द सर्विंग ऑफ नोटिस यू हैव टू फाइल अ काउंटर स्टेटमेंट दैट्स कि ये जिसने अपोज किया है वो अपोज प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अपोज तो कोई भी कर सकता है, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप और मैं भी चाहे तो वेल नोन इंडिया की कंपनी का अपोज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फी भरनी है और अपोज कर दिया। जब ये
जब काउंटर स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो अपने को काउंटर करने का होता है कि उसका कोई राइट डिप्राइव नहीं हो रहा है, उसको मेरे ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तब जाके सरकार दोनों को हियरिंग के लिए बुलाती है। ये हियरिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में होती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, वहीं पे आप दोनों को बुलाएंगे, दोनों के एडवोकेट को बुलाएंगे, दोनों के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकती है और हियरिंग करेगी। हियरिंग के बाद में सरकार अगर सरकार सेटिस्फाई हो जाती है कि नहीं अपोजिशन बराबर है, तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर अपोजिशन वैलिड नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे और ओरिजिनल जिस ट्रेडमार्क ऑनर ने एप्लीकेशन किया उसको मार्क उसको दे देंगे। अब जैसे ये ट्रेडमार्क आपके पास आ जाता है तो आप उस ट्रेडमार्क को आपको क्या करने का, जब ब्रांड आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपके पास ब्रांड आ जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नाम का और तो कोई ट्रेडमार्क एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता। हाँ, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस पिक्चर में आती है। आप अपने क्लाइंट ने ट्रेडमार्क ले तो लिया, आपने फ्लैट या बंगलो खरीद तो लिया, लेकिन कोई अंदर घुस के रह तो नहीं रहा है। आप प्रॉपर्टी होती तो आप जाके देखते कि बराबर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो प्रॉपर्टी में कोई और घुस गया हो, लेकिन ये जो ट्रेडमार्क में भी ऐसा ही है। अगर आपका ट्रेडमार्क हो गया और किसी ने आपने ध्यान नहीं रखा तो और कोई नया एप्लीकेंट आएगा और एप्लीकेशन कर देगा, आप अपोजिशन नहीं कर पाए तो उसको भी राइट मिल जाएगा। तो मल्टीपल राइट उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। देयर शुड बी अराइज अ मल्टीपल राइट, जो आगे को आपको लिटिगेशन के लिए महंगा पड़ सकता है। अभी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड क्यों कराएगा। एक तो सबसे पहले आपका जो अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो जाता है तो आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने के बाद में आपको राइट्स मिलते हैं एज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर कि आपके ट्रेडमार्क का कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं करेगा। जिसको भी ट्रेडमार्क का यूज करना है वो आपसे राइटिंग में परमिशन लेगी, आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आपको भुगतान करना पड़ेगा, बराबर। अगर आपने उसकी आपकी जानकारी के बगैर उसने मार्केट में वो माल बेचना चालू किया है या उस नाम से सर्विस प्रोवाइड चालू किया है, अगर माल बेचना चालू किया है तो सरकार उसको इंजेक्शन दे देगी, उसके माल को सीज कर देगी। ये माल आप बेच नहीं पाओगे। आपने अगर पाउच या इतना यूज खर्चा किया है जिसने डुप्लीकेट करने के लिए, उसको आप रुकवा सकते हो। आपके राइट लीगली प्रोटेक्ट होंगे, आपके माल को और कोई अनऑथराइज प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता। ये हुआ आपको ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क के बारे में जानकारी। अब उसके बारे में दूसरा आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन आई 1999 में। ज्योग्राफी हर जगह कई एक वस्तु फेमस होती है, आपको मालूम, नेम एंड फेम, जहां पे जगह होती है। जैसे आप आगरा के पेठे, आगरा के पेठे एक ऐसी वस्तु है जहां पे आगरा उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, ज्योग्राफी के कारण फेमस है। कांजीवरम की साड़ियां, वो कांजीवरम की साड़ियां वो कांजीवरम में जाके फेमस है। दार्जिलिंग की चाय, पाटन के पटोले, रतलामी सेव, आपने सुना है। ये सब रतलामी सेव क्यों रतलाम की फेमस है, वैसे तो बॉम्बे में भी रतलामी सेव आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल है वहां के लोगों का रोजगार को प्रोटेक्ट करना। वहां दूसरे लोग रतलामी सेव का यूज करेंगे तो रतलाम के लोगों के जहां खरेखर पानी के टेस्ट के कारण वो क्वालिटीज आती है वो यहाँ पे नहीं आ सकती। आगरा के बेटे बॉम्बे बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। जो लोगों का रोजगार वहां के लोगों का है, जो वो प्रोडक्ट बना रहे बेच दे रहे, ज्योग्राफिकली उनकी वैल्यू है। पाटन के पटोले पाटन में फेमस है कि पाटन के जो कारीगर है, कामदार है, जो पटोले बनाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने ये लेके आया कि जो बर्ड ज्योग्राफिकली फेमस है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सरकार ने क्या किया कि आप एक कलेक्टिव ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करो। अब आपका एसोसिएशन एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेगा और वो एसोसिएशन के मेंबर सभी वो नाम लगा सकते हैं। जैसे कोई भी रतलामी सेव लगाएगा, उसके साथ जय रतलामी सेव, कृष्ण रतलामी सेव, या जो भी रतलामी सेव, बीकाजी भुजिया, ये बीकाजी भुजिया वो उसी का है कि बीकाजी की नमकीन फेमस है, तो वो वर्ड रतलामी सेव लगा सकते हैं, बीकाजी भुजिया लगा सकते हैं, पाटन के पटोले लगा सकते हैं, लेकिन उनका ट्रेड नेम डिफरेंट हो सकता है। तो सरकार वो ट्रेड नेम एसोसिएशन को ग्रांट करेगी। आपके जो जैसे बीकाजी नमकीन बनाने वालों का एक एसोसिएशन है और वो एसोसिएशन अपने मेंबर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा और वो एसोसिएशन होगा, वो अपने मेंबर्स को राइट देगा कि आप ये नाम में बीकाजी सेव नीचे लगा सकते हैं, बीकाजी भुजिया लगा सकते हैं। इस तरह से रतलामी सेव, बीकाजी भुजिया, पाटन पटोला, दार्जिलिंग टी, इससे रिलेटेड सरकार इनको प्रोटेक्ट करती है। और ये इसका भी राइट है, आपका जो कॉपीराइट, इसका राइट भी 10 ईयर तक ही है ज्योग्राफिक इंडिकेशन का। तो तीसरा इंपॉर्टेंट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, क्यों कराते हैं कॉपीराइट?
लिटरेरी वर्क, आपने कोई साहित्य लिखा है, आपने कोई किताब लिखी है, आपने कोई नॉवल लिखी है, आपने कोई फिल्म की स्टोरी लिखी है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कोई गाना बजाया है, आप म्यूजिक के शौकीन है, आप कंपोज किया है, तो क्या आपके धुन को कोई कॉपी करके बजा सकता है? आपको जनरली आपने देखा होगा कि आप डिस्कोथेक में जाते हैं या रात के आपके घर में म्यूजिक पार्टी होती है, तो आप उस म्यूजिक पार्टी में उस धुन को यूज नहीं कर सकते। आपको शायद पता नहीं होगा, पुलिस आके रुकवा सकती है। ओरिजिनल जिसने ये कंपोज किया है, जिसने ये म्यूजिक बनाया है, जिसने धुन बजाई है, आप घर पे यूज करके लोगों को डांस डिस्कोथेक में वो धुन बजा के लोगों को नहीं नचा सकते, क्योंकि उसमें आपका राइट नहीं है, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है। अगर आपको वो म्यूजिक धुन आपको बचाना है तो आपको कंपोजर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आपने फिल्म क्रिएट की है, फिल्म के ऊपर राइट है। तीसरा, आपके घर पे आर्ट कोई पेंटिंग है, पुरानी पेंटिंग है, आर्ट पेंटिंग के ऊपर आपको राइट मिलेगा, तो वो इसी लिटरेसी में जाएगा। फिल्म का नाम, म्यूजिक, ये जो जितने भी कॉपीराइट है वो इसी में होगा। उसकी कॉपीराइट की ऑफिस दिल्ली है। अब दूसरा इसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि हाउ द कॉपीराइट इज लिंक्ड विद द ट्रेडमार्क अथॉरिटी। आपने कोई भी ट्रेडमार्क ले लिया, ट्रेडमार्क की आपकी डिजाइन और लोगो फिक्स है, क्या इसको कॉपीराइट कराना जरूरी है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वाघ बकरी चाय का। आप वाघ बकरी चाय, आपकी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, नाम आपका रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ लोग वाघ बकरी की जगह शेर बकरी लिखेंगे, ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। और वाघ बकरी के थैलियां ऐसी डिजाइन करेगी, पाउच पैकिंग ऐसी डिजाइन करेगी जैसे वाघ बकरी लिखती है। अब उसको भी वाघ बकरी वाला नहीं चाहेगा सर्टेनली कि इस तरह का कोई मिसयूज करके मेरे प्रोडक्ट को बेचे मार्केट में। तो वो क्या जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका कॉपीराइट कराया जा सकता है? यस, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का भी कॉपीराइट कराया जा सकता है। ये आपको डबल लेयर प्रोटेक्शन देता है। आपका नाम भी कोई यूज नहीं कर सकता, और आपका लेआउट, आपकी थैलियों की डिजाइन, आपके कलर कॉम्बिनेशन, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेडमार्क का कॉपीराइट करना। तो सबसे पहले तो आपका ट्रेडमार्क होना जरूरी है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो कॉपीराइट रजिस्ट्री आपको उसका कॉपीराइट नहीं करेगी। तो आपको ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। आपका ट्रेडमार्क है, अब आपका ट्रेडमार्क है तो आपको एक फॉर्म भर के ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा कि हम इसका कॉपीराइट कराना चाहते हैं। आप हमको एक सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन दीजिए कि हमारे इस तरह का मिलता जुलता किसी का लोगो नहीं है, किसी की थैली नहीं है, किसी का पाउच नहीं है, पैकिंग नहीं है। एक जब ट्रेडमार्क, इसके लिए आपको 10,000 फी भरनी पड़ेगी ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास में, और वहां से आपको एनओसी लेके आना है। एनओसी आने के बाद में आप कॉपीराइट रजिस्ट्री के पास जा सकते हैं कि मेरे को ट्रेडमार्क अथॉरिटी ने ये आपको डिजाइन के लिए एनओसी दे दिया है, मेरे नाम के लिए एनओसी दिया है, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, आई एम दी बोनाफाइड। तब जाके आपको ये कॉपीराइट रजिस्ट्री आपको कर देगी। अब मैं कॉपीराइट की बात कर रहा था, ये तो ट्रेडमार्क का कॉपीराइट हुआ। कॉपीराइट में आपने कॉपीराइट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जैसे ऑथर है, किसी ऑथर ने किताब लिखी, अपने सब किताबें पढ़ते हैं, सिंघानिया की किताबें आती है, गिरीश आहूजा जी की किताबें आती है, लेकिन किताबें कोई और लिखता है, पब्लिश कोई और करता है, और बेचता कोई और है, बराबर? तो क्या राइट किसको मिलेगा? तो ओरिजिनल राइट ऑथर को मिलेगा। ऑथर ने जो किताबें लिखी है, अगर आपको कॉपीराइट पब्लिशर को देना है तो पब्लिशर उस पर ले सकता है, लेकिन ऑथर से उसको एनओसी लाने पड़ेगा कि पब्लिशर ये बुक पे कॉपीराइट ले रहा है, लेकिन ऑथर का नो ऑब्जेक्शन उसको कंपल्सरी है। अगर ऑथर नो ऑब्जेक्शन नहीं देगा, क्योंकि मेन मालिक वो है जिसने ये लिखा है, किताबें लिखी है, अगर वो एनओसी देता है तब जाके आप कॉपीराइट रजिस्ट्री के पास जा सकते हैं कि मेरी ये बुक है, इसके ऑथर ये है, इनका और हमारा अरेंजमेंट है, इन्होंने हमको एनओसी दे दिया है और हम इसके लिए आपके पास आए, आप हमको कॉपीराइट करके दे दे। सेम वे फिल्म में भी ऐसा ही है। फिल्म की स्टोरी जिसने लिखी है, फिल्म बनाने वाला कोई और है, फिल्म मेकर कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है, लेकिन जिसने फिल्म के लिए कथा लिखी है, पटकथा लिखी है, डायलॉग्स लिखे है, उसकी एनओसी जरूरी है। और क्योंकि जो उसकी पटकथा या स्टोरी को यूज करता है, तो वो जो प्रोड्यूसर है उसको पैसा देता ही है, तो उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो हो जाता, तभी जाके वो एनओसी देगा। म्यूजिक राइट में भी ऐसा ही है। जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, धुन डेवलप करते हैं, फिल्म के लिए धुन बनाते हैं, तो ओरिजिनल जो म्यूजिक टी सीरीज म्यूजिक है, वो जो म्यूजिक के राइट्स हैं उसके वो लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल धुन कंपोजर से राइट आपको लेना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि किसी डिस्कोथेक में धुन बजाने से पहले ध्यान रखना कि उस डिस्कोथेक के मालिक ने उस धुन बजाने के लिए राइट लिया है कि नहीं लिया है। वैसे अगर नहीं लिया है तो वो किसी का अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकता, आपको बीच में आके बंद करवा सकते हैं। ऐसा ही एक स्टोरी हमारे हो गया था जब आई वाज चेयरमैन ऑफ अहमदाबाद ब्रांच, और हम बच्चों के लिए, विकासा के बच्चों के लिए एक
डिस्को प्रोग्राम रखा था कि CA डे के बाद में कि शाम को उसी टाइम वहां पे कंपोजर के वो म्यूजिकल राइट के वहां से आदमी आए और बोला कि आप ये धुन, उसको डिस्कोटेक मालिक को बोला कि आप बंद कर दो, आप नहीं बजा सकते हैं। तब जाके पुलिस आई, वो धुन उसने बंद कराई और उसके मालिक से शायद उसके बाद में केस हुआ। उसके बाद में तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन वो उन्होंने बजाने नहीं दी। कॉपीराइट जब हो सकता है तो अपने आप बुक्स के ऊपर C लिख सकते हैं कि आपकी ये बुक कॉपीराइट है, बराबर। ये कॉपीराइट म्यूजिक, फिल्म, डिजाइन, ये सब सबका होगा। अब फिर आता है पेटेंट। पेटेंट क्या है, क्यों पेटेंट रजिस्टर करा सकते हैं? आप सब जानते हैं कि जब तक देश में इन्वेंशन नहीं होगा, नेसेसिटी इज ए मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे आपको जरूरत महसूस होगी तो आप इन्वेंशन करोगे। इन्वेंशन करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। आपको जैसे अभी ये कोविड का इन्वेंशन चालू है, जो कोविड हुआ सब लोग तो इन्वेंशन नहीं करते, जो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं उसके R&D के पीछे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं। उनकी टीम लगी हुई है, उनके रिसोर्सेस लगे हुए हैं। जब ये रिसोर्स और टीम और R&D का खर्चा है, इन्वेंशन हो जाती है। अगर क्या इसी इन्वेंशन को सभी लोग यूज करेंगे तो कोई इन्वेंशन नहीं करेगा। ये 1940 की हिस्ट्री है। इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट एक्ट लेके आए थे। पेटेंट इज एन टेरिटोरियल राइट। पेटेंट उस देश में वैलिड है जहां पे आपने इन्वेंशन किया है, वहां पे आपके इन्वेंशन रजिस्टर्ड है। अगर आपको इंडिया में आपने इन्वेंशन किया है, इंडिया में आपका पेटेंट है, तो आप यूके के लिए जा सकते हैं, USA के लिए जा सकते हैं और कंट्री में जहां पे आपको अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करना है कि मेरे इन्वेंशन का कॉपी न हो जाए। अब इन्वेंशन है या नहीं, अब लोग नॉन ऑबी, इसके लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर है नॉन ऑबिवियस। जग जाहिर नहीं होना चाहिए। 2+2 4 होता है, पंखा राइट घूमता है, इस तरह से कोई इन्वेंशन नहीं होगा। और नॉन ऑबिवियस होना चाहिए, विच इज न्यू टू दी वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए नहीं होनी चाहिए। आपने इन्वेंशन किसी की कॉपी नहीं की हुई है, क्योंकि सरकार के पास डेटाबेस है, एक्सपर्ट की टीम है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये इन्वेंशन ऑलरेडी है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इन्वेंशन न्यू है, मैंने बनाई है, मेरी टीम ने बनाई है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आपको सरकार पेटेंट लाई इसलिए कि जो ओरिजिनल है, बोनाफाइड है, जिन्होंने इन्वेंशन की है, जिन्होंने ये R&D किया हुआ, R&D पे खर्चा किया हुआ है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार आपको इनिशियली 10 ईयर का राइट देती है कि आप 10 ईयर पे आपकी मर्जी के बिगर, आप या आपकी लिखित मर्जी के बिगर कोई ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, तभी जाके उसके राइट प्रोटेक्ट होते हैं। और फर्दर सरकार को लगता है कि इस इन्वेंशन में उसने बहुत किया है, दे कैन एक्सटेंड टू फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर। सो आपको 10 ईयर प्लस 10 ईयर 20 ईयर आपको राइट मिलेगा, और उसके बाद में जो आपकी इन्वेंशन है वो कॉमन हो जाएगी, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट कर सकता है। अभी इंडिया में रूटीन प्रॉब्लम आता है कि क्या कॉपीराइट, ये जो आपका है सॉफ्टवेयर बना है, सॉफ्टवेयर का पेटेंट हो सकता है? नहीं, इंडिया में सॉफ्टवेयर का पेटेंट नहीं होता है। US में सॉफ्टवेयर का पेटेंट होता है, लेकिन इंडिया में अगर आपको पेटेंट करना है तो सॉफ्टवेयर के साथ में हार्डवेयर होना जरूरी है, तभी जाके आप पेटेंट करा सकते हैं। आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को पेटेंट कराना, वेबसाइट की कोई पेटेंट नहीं होता। वेबसाइट का कॉपीराइट हो सकता है, और वो भी कॉपीराइट उसका होता है जो वेबसाइट के अंदर कंटेंट आपने लिखे हुए। यू हैव टू प्रोवाइड ए सोर्स कोड, कंटेंट आपको देना पड़ेगा। आपने कोई ऐप बनाई है, उस ऐप का भी कॉपीराइट ही होगा, लेकिन आपको जो ऐप बनाई है उस ऐप का बाहरी लोकेशन कैसा होगा, कैसी दिखेगी, क्या कंटेंट्स है, वो कंटेंट की आप कॉपी नहीं कर सकते। वो कॉपीराइट एक्ट में आएगा, पेटेंट में नहीं आएगा। पेटेंट में इन्वेंशन आएगा, बेसिकली इन्वेंशन है। अगर आपको ये इन्वेंशन फॉरेन में करानी है तो कैसे करानी, इसके बारे में भी बताऊंगा। व्हाट इज द वाइपो प्लेटफॉर्म क्या है वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा। अभी आते हैं अपने इंडस्ट्रियल डिजाइन पे। ये इंडस्ट्रियल एक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत वाइड है। डिजाइन क्या होता है? घड़ी की डिजाइन, आपके बटन की डिजाइन, जूते की डिजाइन, चश्मा की डिजाइन, कार की डिजाइन, एयरक्राफ्ट की डिजाइन, एक्सक्लूसिव टेबल की डिजाइन, मोबाइल की डिजाइन। आपने देखा कोई सेम नहीं होता। कैलकुलेटर की डिजाइन, ये सब रजिस्टर्ड होता है। आप कॉपी नहीं कर सकते किसी के डिजाइन की, आपको रोक दिया जाएगा। ये डिजाइन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। आप कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन आप नहीं ला रहे हो तो आप कृपया अपने क्लाइंट को देख ले कि एक बार वो पेटेंट में चेक करा ले, ये डिजाइन एक्ट में चेक करा ले, किसी प्रोडक्ट की डिजाइन तो नहीं है, डिजाइन कॉपी की और ओरिजिनल डिजाइन होल्डर है जिसके नाम पे ये डिजाइन रजिस्टर्ड है, वो आपका प्रोडक्ट रुकवा सकता है, आप पे केस कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को सीज करवा सकता है। तो आपको जितनी भी, इवन तो कपड़े की डिजाइन, लेटेस्ट आपने कपड़े की डिजाइन बनाई, आपके
डिजाइन मास्टर ने, आप मालूम है कि कपड़े में डिजाइन मास्टर की बहुत सैलरी होती है। डिजाइन मास्टर ने कोई डिजाइन डेवलप की है, वो जैसे आप भिवंडी है, सूरत में है, तो डिजाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। डिजाइन सब सीए, आपके क्लाइंट ने कोई डिजाइन डेवलप किया और वो डिजाइन की कोई कॉपी कर रहा है, अपना क्लाइंट किसी की डिजाइन बना रहा, तो उसको ये बता दीजिए कि आप ये जो डिजाइन कर रहे हैं वो पहले डिजाइन एक्ट में चेक करा लीजिए किसी की डिजाइन, क्योंकि ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, सब पोर्टल पे है। जब तक आप चेक नहीं करोगे और आपके क्लाइंट ने डिजाइन बनाना चालू कर दिया तो आपके क्लाइंट को ह्यूज लॉस हो सकता है। आप अपने क्लाइंट को फेयर एडवाइस दे सकते हैं कि इस तरह का आईपीआर राइट आप भी ले लें, आप नई डिजाइन बनाते हैं या आप किसी नई बनाने आ रहे हैं तो आपकी, या तो आप नई अपनी खुद की रजिस्टर करा लें या किसी ने की हुई है तो आप उसकी कॉपी करके कृपया न करें। डिजाइन एक्ट कोलकाता में इसकी ऑफिस है, डिजाइन एक्ट में आप इसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो डिजाइन एक्ट से फायदा क्या होगा कि एक तो आप खर्चा करके डिजाइन बना रहे हैं, जैसे एयरक्राफ्ट की डिजाइन बनाई जिसके पीछे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, और वही एयरक्राफ्ट की डिजाइन, कार की डिजाइन आपने देखा कि ओडी की डिजाइन मर्सिडीज से नहीं मिलती, मर्सिडीज की ओडी से नहीं मिलती, लैंड रोवर की मर्सिडीज से नहीं मिलती। तो एक दूसरे की डिजाइन आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं वो या तो उसकी डिजाइन देख के खुश होते हैं या उसका अंदर का इंटीरियर देख के खुश होता है। इसका इंटीरियर भी ये रजिस्टर्ड होता है, आप सेम इंटीरियर की कॉपी अपने के लिए नहीं कर सकते। तो ये तो रहा आपका डिजाइन एक्ट का। मैंने ट्रेडमार्क के बारे में बताया, जियोग्राफिक इंडिकेशन के बारे में बताया, पेटेंट के बारे में बताया, कॉपीराइट के बारे में बताया और इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में। अब मैं ये बताता हूं कि क्या ये सब जो राइट आपके हैं आप उनको बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर करा तो लिया, आपने खर्चा कर लिया, आपका कई लोग तो ऐसा ही करता है कि उसका ब्रांड है उसको डेवलप किया और बेच दिया। मैं आपको ये एक उदाहरण देता हूं बैन इंडिया लैब का। बैन इंडिया लैब का एक सैसा ऑयल, राजकोट बेस्ड कंपनी है, सैसा ऑयल बहुत उसका फेमस ब्रांड आता था ऑयल का। उसने सोचा कि मेरे बाकी ब्रांड से इसको मैं अलग कर दूं, मेरे को इसमें ये ब्रांड नहीं रखता, मेरी किटकी में ये ब्रांड नहीं होना चाहिए। इस ब्रांड के लिए बाहर का जो पी इन्वेस्टर था उसने बोला कि मैं पैसे लगाता हूं, और उन्होंने वो ब्रांड अलग लेके एक कंपनी पूरी अलग बनाई और उससे कम से कम उनको 1000-1200 करोड़ रुपए मिले। तो कई लोग तो ब्रांड डेवलप करते हैं और बेच देते हैं और अपने प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो ये ब्रांड की ह्यूज वैल्यू है। तो इस ब्रांड को कैसे ट्रांसफर करता है, कौन ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को बेचते हैं तो आप उसको बेच सकते हैं, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क के लिए सबसे पहले क्या क्या आपको चाहिए? सबसे पहले आपको कौन सा ट्रेडमार्क बेचना है, वो ट्रेडमार्क आपने कौन सा बेचना है, उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट कवर होते हैं, उसका ऑनर कौन है, उसकी लीगल वैलिडिटी कहां तक है, ये जब आप नक्की करते हैं तो, और फिर आती है कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट आई शुड सोल्ड माय ट्रेडमार्क, मुझे किस कॉस्ट में मेरे को ट्रेडमार्क बेचना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगेन यहाँ पे सीए की भूमिका आती है, आप कॉस्ट नक्की करने के लिए उसको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन आपसे ज्यादा कौन जा सकता है, सीए से ज्यादा कौन जा सकता है, वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू है तो भी कॉमर्शियल जगलरी में आपको आपसे ज्यादा मेरे हिसाब से आपकी हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वैल्यूएशन परफेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू आनी जरूरी है। क्योंकि ये भले ये दिखती नहीं है ये प्रॉपर्टी, लेकिन इसका फ्यूचर में क्या कमाने वाले हैं, इसका टर्नओवर कितना था, इसी ब्रांड को अगर कंटिन्यू सेल करेंगे तो ग्रोथ कितने परसेंटेज होगा, इस ग्रोथ के परसेंटेज से हम क्या कमाने वाले हैं, ये सब जाके आप एक सर्टेन वैल्यू पे आते हैं। ये वैल्यू के लिए आपको टैक्स अथॉरिटी भी पूछेगी, जब आपने ये बेचा तो यही वैल्यू क्यों आई, तो आपका डिसीजन है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि हमारा ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू के लिए ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, हमने इसे इस तरह से वैल्यूएशन किया हुआ है। अब स्टैंप अथॉरिटी इसमें आती है, आप जिस स्टेट में रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेट अथॉरिटी के स्टैंपिंग लोकल, आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं तो इसमें स्टैंप लगता है, इवन तो फिजिकल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो भी स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो स्टैंप ड्यूटी आपके स्टेट के रूल्स के हिसाब से भरनी पड़ेगी। तो इसी तरह आप महाराष्ट्र में कोई ट्रेडमार्क की डील होती है तो महाराष्ट्र की स्टैंप ड्यूटी लगेगी, गुजरात में होगी तो गुजरात में लगेगी। जब ये स्टैंप ड्यूटी नक्की हो जाती है, आपका कॉस्ट नक्की हो जाता है, तो एक एग्रीमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड दी ट्रांसफर, ये असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एग्रीमेंट। उसमें आपको 2 एनओसी देना कंपलसरी है। क्या आपका ट्रेडमार्क जिसको आप असाइन कर रहे हैं वो सरकार बोलती है क्या इसमें कोई लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है, आपके ऊपर किसी ने केस तो नहीं किया है, जब तक आप नो लिटिगेशन का सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे, ऑनर जो ट्रेडमार्क बेच रहा तो उसका सब्सिक्वेंट ऑनर का नाम उसमें नहीं आएगा।
क्योंकि अगर आपका ट्रेडमार्क लिटिगेटेड है, इसके ऊपर एनकम्बरेंसेस है, तो ये आपको ये ट्रेडमार्क सरकार ट्रांसफर करके नहीं देगी। उसमें रिक्वायर्ड फी है 10,000 रुपीज। आप 10,000 विद इन 1 मंथ आपको 10,000 फी के साथ में आपको ट्रेडमार्क अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा। ये मेरा एग्रीमेंट है, ये हमने सेल किया है, ये हमारी टोटल डिटेल। तब जाके सरकार को अगर कुछ लगता है कि आपके उसमें देयर इज एन डेफिसिट इन द एग्रीमेंट ड्राफ्टेड बाय यू और देयर इज नो लिटिगेशन, आपने सर्टिफिकेट्स नहीं दिया हुआ, तो रजिस्ट्री आपको हियरिंग के लिए बुला सकती है। एग्रीव पार्टी इसको नोटिस दे सकती है कि क्या आपने ये ट्रेडमार्क बेचा है। सपोज 2 भाई हैं, 2 ब्रदर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जॉइंट ट्रेडमार्क है, फैमिली ट्रेडमार्क है, तो फैमिली का कोई एक मेंबर ट्रेडमार्क की डील करता है तो बाकी मेंबर उसमें डिप्राइव हो सकते, क्योंकि ट्रेडमार्क में बाय राइट उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप पार्टनर है तो ट्रेडमार्क पार्टनरशिप में पार्टनर्स के नाम पर रजिस्टर होता है, नॉट इन द पार्टनरशिप फर्म। तो आपके पार्टनरशिप का ट्रेडमार्क कोई बेच रहे हैं और सपोज कोई पार्टनर्स 2 पार्टनर के नाम पे एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और वो ट्रेडमार्क बेच रहे हैं, तो ट्रेडमार्क जब दूसरे पार्टनर्स को भी सरकार एनओसी के लिए पूछ सकती है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब वो पार्टनर रिटायर हो गया तो उसके जब रिटायरमेंट एग्रीमेंट बनता है तो क्या आपने उस पार्टनर से एनओसी गुडविल का सेटलमेंट कर लिया था, ट्रेडमार्क का सेटलमेंट कर लिया था कि अभी फ्यूचर जो राइट होंगे वो ट्रेडमार्क में इसी में रहेगा। जब भी आपके पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं, कंपनी में चेंजेस होते हैं, आपके मैनेजमेंट में चेंजेस होते हैं, यू शुड इन्फॉर्म टू दी ट्रेडमार्क अथॉरिटी कि नाउ दे आर दी सब्सिक्वेंट ट्रेडमार्क। आपकी कंपनी ने अप्लाई किया जब वो एलएलपी थी, बाद में पार्टनरशिप होगी, बाद में लिमिटेड कंपनी होगी, आपके रजिस्ट्री ऑफिस का एड्रेस चेंज हुआ, तो एवरी चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट एड्रेस वो आपको ईच टाइम आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को इन्फॉर्म करना है। जब ये बात कर रहे थे अपने आपको असाइनमेंट या ट्रांसफर का, तो वो ट्रांसफर के लिए जब जाते हैं तो सरकार कंप्लीटली सेफ सिक्योर हो जाती है कि हम जो ट्रांसफर करके दे रहे हैं उसमें किसी का राइट नहीं जा रहा है, किसी को बहकाया नहीं जा रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं बहकाया जा रहा। तो उनसे अगर किसी का फैमिली ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है और फैमिली ब्रांड है और फैमिली वाले कंटिन्यू रखना नहीं चाहते, तो आपको लीगल एरर का सर्टिफिकेट चाहिए। और सभी लीगल एरर, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, पुराना मकान बेचा आपने और वो मकान आपने बेच रहे हैं, तो अपने दादा का था तो दादा के जितने बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, उन सबका एनओसी लगता है। सेम वे ट्रेडमार्क में भी आपको फैमिली ट्री में सबका एनओसी चाहिए कि फैमिली ट्रेडमार्क आप बेच रहे हैं, तो आपके जो लड़कियां हैं, लड़कियों के बच्चे हैं, जो भी अपने सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो भी नाम है, तो उनको आपको वो नाम एनओसी लाके देना पड़ेगा, तभी जाके सरकार उसके नाम पे रजिस्टर कर देगी। वो उसको वहां पे जो साइट है ट्रेडमार्क की, जहां पे आपका रिकॉर्ड है, वहां पे सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर, यहाँ पे प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब ऑनर से है, नॉट अ प्रोप्राइटर। वहां पे सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर में आप तो कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ये सब हो सकते हैं। तो वो जाके आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अब आती है उसकी कैपिटल गेन की बारी। फिर अपने पिक्चर में आगे अगर कैपिटल गेन है तो इन जो गुडविल का कैपिटल गेन कैसे भरेंगे, वो सब आपको आएगा। अब तो इसीलिए आपका जब ट्रेडमार्क असाइन हो जाता है, ये प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, तो इसमें भी कॉमर्शियल भूमिका रहती है अपने सीए की। एग्रीमेंट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट, पार्टी को मिलाना, अमाउंट तय करना, ये सब रहेगा। उसके बाद में मैं आता हूं वाइपो के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। व्हाट इज वाइपो? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपने डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में सुना होगा, जहां यूनाइटेड नेशन की ये डिफरेंट ब्रांचेस है, बराबर। डब्ल्यूटीओ का नाम तो अभी आप कोविड में बहुत बराबर से सुन ही रहे हैं कि कोविड के लिए डब्ल्यूएचओ ने कुछ किया नहीं। यूएसए, चाइना, ये यूएसए ने तो इवन दो ग्रांट देने का भी मना कर दिया था कि मैं डब्ल्यूएचओ को ग्रांट क्यों दूं, जब उसने कुछ वर्ल्ड की हेल्थ के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा सेम यूनाइटेड नेशन के अंडर में वाइपो करके है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पॉपुलरली नोन एज वाइपो। जितने 196 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से मेजोरिटी ऑफ दी कंट्रीज उसकी मेंबर है, वाइपो की मेंबर है। वाइपो क्या है? वाइपो एक प्लेटफॉर्म है। मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था कि जो भी इस वाइपो की मेंबर है, जो कंट्री वाइपो के मेंबर है,
उनको अगर ट्रेडमार्क दूसरे कंट्री में कराना है तो कैसे कराना होगा? अभी तक आप और मैं जानते हैं कि ट्रेडमार्क टेरिटोरियल राइट है। इंडिया का ट्रेडमार्क इंडिया में एप्लीकेबल होता है, यूएसए का ट्रेडमार्क यूएसए में होता है, जर्मनी का जर्मनी में होता है। अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है तो उसको इंडिया में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा, जैसे मैकडोनल्ड्स है या एलन सोली है, लुई फिलिप्स है, या जो भी इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया में बिजनेस करते हैं, उन सबके ब्रांड इंडिया में रजिस्टर्ड है। और जो इंडिया के जैसे टाटा, बिरला, ये जो फॉरेन में धंधा करते हैं, उन सबके ट्रेडमार्क वहां पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी तक क्या करना था, आपको हर कंट्री के लॉयर से कांटेक्ट करना पड़े, हर कंट्री में जाके आपको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन करनी पड़े, वहां के लॉ के हिसाब से आपको ट्रेडमार्क एग्जामिन करके वो लोग देखेंगे। आपको कंट्री टू कंट्री आपका ट्रेडमार्क करवाना पड़ता, क्या अभी भी करवाना पड़ता है जहां जो मेंबर्स नहीं है। तो एक मैड्रिड कन्वेंशन हुआ था जहां पे एक ट्रीटी हुई कि क्यों ना हम सब देश कंट्री साथ में आ जावे, और जिसको एक से ज्यादा कंट्री में एप्लीकेशन करनी है, जैसे इंडिया का टाटा ब्रांड है, उसको मल्टीपल कंट्री में उसके बिजनेस है, 100+ कंट्री में उनका बिजनेस है, तो क्या हर बार एप्लीकेशन सिंगल करें, क्या उस अलग अलग कंट्री में करें? उसकी जगह ये मैड्रिड प्रोटोकॉल कहता है, वाइपो प्लेटफॉर्म के अनुसार आप एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल कंट्री में कर सकते हैं। वो स्विस फ्रैंक में उसकी एप्लीकेशन करते हैं, स्विस फ्रैंक में। तो एक कलर के लिए अलग है और नॉन कलर के लिए अलग है। आपको ओरिजिन कंट्री में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सपोज मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपको यूएसए में ट्रेडमार्क करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, यूके में करना है। जैसे इंडिया का कच्ची किंग है, कच्ची किंग एक अपने यहाँ पे जो बर्गर है, अपने बोलते हैं दाबेली बोलते हैं, किंग कच्ची दाबेली, वो आपको यूके में भी बेचनी है, ऑस्ट्रेलिया में बेचनी है और जर्मनी में बेचनी है। तो क्या करेंगे, नॉर्मली अगर ये जो वाइपो प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम लोग क्या करते, हर कंट्री के एडवोकेट को मिलते, वहां के लॉ को जानते, वहां एप्लीकेशन करते, वहां से कम्युनिकेशन करते और फिर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते। लेकिन वाइपो आने के बाद में आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो गया। आपको ओरिजिन ऑफ इंडिया, सबसे पहले आपको आपका ट्रेडमार्क जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंडिया में आपको ट्रेडमार्क इंडिया के थ्रू 4 कंट्री में करना है, तो सबसे पहले आपका ट्रेडमार्क इंडिया में होना चाहिए। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन हम बोलते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन में अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो आप उस कंट्री ऑफ ओरिजिन का ऑफिस को यूज करके मल्टीपल एप्लीकेशन करते हैं। सपोज मैं अहमदाबाद बैठा हूं और मुझे इंग्लैंड, जो मैंने 4 कंट्री बोली है, वहां पे ट्रेडमार्क करना है, तो मैं क्या करूंगा, अहमदाबाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जाके एक वाइपो प्लेटफॉर्म पे एक एप्लीकेशन दूंगा कि मुझे इस कंट्री में ये एप्लीकेशन करनी है। तो आप वाइपो का आप खोल सकते थे, वाइपो का साइट है WIPO का, जहां जाके हर कंट्री की फी दी हुई है, हर कंट्री की इंडिविजुअल फी कितनी है। वैसे अपने यहाँ पे इंडिया में ये ट्रेडमार्क की फी बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में तो ह्यूज फी है, आई एम सरप्राइज टू नो। वहां पे यहाँ पे ट्रेडमार्क की फी आपको 10,000 में हो जाता है, 10, 15 या 20,000 में। वहां पे 50,000 लाख लाख रुपया, तो 50,000 तो सर्टिफिकेट्स की चार्ज ले लेते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और जाके चेक करेंगे कि मुझे 4 कंट्री में ट्रेडमार्क करना है, तो चारों कंट्री की फी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही फी का टोटल स्विच फ्रैंक में आप इंडिया में पे कर सकते हैं डायरेक्ट। और वो क्या करेगा, वो जब प्लेटफॉर्म आपके पास में वो एप्लीकेशन आ जाएगी इंडिया ओरिजिन कंट्री में, जो अगर वो आ जाती है तो ओरिजिन कंट्री उसको क्या करेगी, उसको उस कंट्री में भेज देगी जहां जहां पे ये करने वाले हैं। एप्लीकेंट कंट्री, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ऑफिस ऑफ ओरिजिन में कर दे। तो वाइपो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, एप्लीकेशन यूके की यूके भेज देगी, यूएसए की यूएसए भेज देगी, और सब कंट्री में चली जाएगी। और वो लोग वहां के लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये लॉ सबके अलग अलग है, वहां के लॉ के हिसाब से उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद में आप वापस आपको उसी प्लेटफॉर्म से आपको ये सर्च रिपोर्ट और वो सब भेज देंगे, एग्जामिनेशन रिपोर्ट की, इस कंट्री की ये प्रॉब्लम्स है, वो आपको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जाके आपको एक ही कंट्री का आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, अलग अलग कंट्री का। सो ये वाइपो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। 122 कंट्री इसके मैड्रिड सिस्टम के अंदर है। द मैड्रिड सिस्टम इज एन कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर रजिस्टरिंग एंड मैनेजिंग द ट्रेडमार्क वर्ल्ड वाइड। फाइल ए सिंगल एप्लीकेशन एंड पे one set of fee to apply protection up to 120 countries. So ये आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। वाइपो इज एन ग्लोबल फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन। दे आर सेल्फ फंडिंग एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशन विद 190
3 member states. So 193 में एक ही प्लेटफॉर्म में जहां पे ये लोग कर सकते हैं. तीसरा, वाइपो में करने के बाद में आप अपने क्लाइंट्स को ग्लोबल सर्विस दे सकते हैं. आपके क्लाइंट्स के जहां ग्लोबली ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब कंट्रीज के लगभग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाके देख सकते हैं. अब मैं आपको दूसरा बताऊं कि एक मल्टीपल उदाहरण देता हूं जिसमें सब कुछ आ जाएगा. एक सीडी प्लेयर है. सीडी प्लेयर आपने देखा जिसके अंदर म्यूजिक बजता है, तो जो इसका जो सीडी की जो डिजाइन है, जो डिजाइन उसको वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर्ड होगी. अंदर जो म्यूजिक बजता है वो कॉपीराइट होगा. उस सीडी का जो नाम दिया, ब्रांड दिया, जैसे टी सीरीज या कोई भी सीरीज, वो आपका ट्रेड नेम होगा. और टेक्निकल डिजाइन है वो डिजाइन एक्ट में चली जाएगी. तो ये एक सीडी आप देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग चीज में अलग अलग है. मनीष भाई, ये लगभग इंफॉर्मेशन तो खत्म हो गई है. आपको क्वेश्चन आंसर लेना है तो आप कर दीजिए, इट्स बेटर, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक के बारे में बताया. अगर आपको और कुछ जानना है तो मैं और जानने के लिए रेडी हूँ. Okay, there are some questions are there. Can take one by one questions. Yes, yes. Can you share your screen and let Purushottam bhai know what are the questions? Who can register the IPR? IPR can register by individual व्यक्ति, proprietor, partners, LLP, startup, limited company, and private limited company, and group of persons. What are the cost of registering IPR? Yes, the cost for individual person is IPR. I'm separating. IPR is just IPR contain trademark, patent, copyright, and design. I'm asking about the trademark. IPR not single, कोई ऐसा एक्ट नहीं है जहां पे रजिस्टर्ड हो, क्योंकि चारों अलग अलग लगे. तो मैं आपको ट्रेडमार्क के बारे में बता रहा हूँ. ट्रेडमार्क कौन रजिस्टर करा सकता है, और आईपीआर सब जो है वो सब अथॉरिटी करा सकती है. व्हाट इज द कॉस्ट फॉर रजिस्टरिंग आईपीआर? तो ट्रेडमार्क में इंडिविजुअल के लिए फी है 4500 इफ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं. ऑफलाइन करते हैं तो 5000. एंड एलएलपी पार्टनरशिप फर्म एंड स्टार्ट एलएलपी पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी एंड ट्रस्ट के लिए, ये जैसे बाबा रामदेव के पतंजलि, ये सब ट्रस्ट में रजिस्टर होता है, उनके लिए 9000 है. हाउ लॉन्ग इट डज getting IPR registered? For 10 years. Trademark for the 10 years. What are the documents required for getting? No. The question is how long means how much time it will take? Yes, I am asking. Normally it take 9 to 10 months. Okay. Yes, आप initially आप apply करते हैं. अप्लाई करने के बाद मैडम वो एग्जामिन करती है अथॉरिटी. एग्जामिन 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपका कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. तो एग्जामिन करके बाद में एग्जामिनेशन में के हिसाब से आपको 3-1 महीने लग जाते हैं. जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जर्नल में वो पब्लिश होता तो 4 महीने के लिए तो आम पब्लिक के लिए ओपन रहता ही है, तो 8-9 महीने लग जाता. हाँ, उसमें फास्ट ट्रैक है. आप जो एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड जो लगता है 2-3 महीने, उसको कम कर सकते हैं. उसकी एग्जैक्टली डबल फी है. आप फास्ट ट्रैक को यूज कर सकते हैं. आपके क्लाइंट आया, उसको बहुत अर्जेंसी है ट्रेडमार्क कराने की, तो वो फास्ट ट्रैक मोड में जा सकता है, तो उसको एग्जामिनेशन जल्दी करके दे देगी आपको गवर्नमेंट. लेकिन 4 महीने का पीरियड को कोई रिड्यूस नहीं कर सकता, के लिए रहेगा, तो वो जल्दी हो सकता है. What are the document required? आपको इनिशियल स्टेज पे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है. आपको डॉक्यूमेंट बाद में देने की जरूरत है. जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन करते हैं, आपने जो भी लिखा है वो करेक्ट होना चाहिए. वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजर पीरियड. आप ट्रेडमार्क को कब से यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको झूठ नहीं बोल सकते. आप झूठ बोलेंगे तो आपका क्लेम बाद में नहीं टेंडेबल होगा. आप अगर आपने यूज नहीं किया हुआ है, आप प्रपोज टू बी यूज करने वाले हैं, आप फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, तो यू राइट इट प्रपोज टू बी यूज. आप नॉर्मली अभी वाइज बिजनेसमैन क्या करते हैं कि पहले आप ट्रेडमार्क बिजनेस चालू करने से पहले, खर्चा करने से पहले, मटेरियल छपवाने से पहले वो देख लेते हैं कि ये ट्रेडमार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा. नहीं तो ये ट्रेडमार्क पहले ले लेते हैं, उसके बाद बिजनेस चालू करते हैं ताकि उसको खर्चा ना करना पड़े. इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स में उसको कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, ऑनलाइन डिटेल्स, आपको नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्लास करेक्टली नक्की करना है.
अगर आपने क्लास क्रैक नक्की नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आप जिस क्लास में कराओगे, आपको ट्रेडमार्क क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, यूजर के बाद में आपको दूसरा कोई इंपॉर्टेंट थिंग है तो क्लास। आप क्या सर्विस देने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो क्लियरली मेंशन कर दो, उससे आपको पता चलेगा कि आपका क्लास किसमें आता है। तो फिर है आपका यूजर डेट हो गया, क्लास हो गया, एड्रेस हो गया, और आपको लोगो चाहिए, या लोगो नहीं है तो आपका नाम चाहिए, उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं चाहिए। लेकिन जब हियरिंग होती है, सपोज हियरिंग होती है, तो जो आपने लिखा है वो करेक्टली डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में देना पड़ता है, एफिडेविट देनी पड़ती है अपने को कि हम सपोज मैंने किया कि मेरा ये यूजर 2003 से, तो क्या मैं वेट में रजिस्टर्ड था, क्या मैं सेल टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड था, या मेरा बैंक अकाउंट खुला था, या मेरी पार्टनरशिप फर्म थी तो डीड से सपोज आपको एस्टैब्लिश करना पड़े कनेक्शन कि भाई क्या आपने एडवर्टाइजमेंट 4-5 साल पहले दी थी इस प्रोडक्ट के लिए, तब जाके करके मैं बोलता कि मैं तो 4 साल से मैं प्रोडक्ट बना रहा बेच रहा था। आपको प्रूव करना पड़ा है, आपका सेल्स बिल आपका सपोर्ट करता है कि आपका सेल्स बिल उस साल का है क्या जिसमें आपने प्रोडक्ट बेचा है। तो ये इनिशियली आपको नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तब आपको देना पड़ेगा। Is the IPR valid only in India or international? Yes, absolutely, very good question. Trademark and IPR right is in territorial right. इंडिया के राइट्स इंडिया में ले लेंगे, इंटरनेशनली आपको करना है तो ग्लोबली आपको जाके करना पड़ेगा। ऐसा कोई ट्रेडमार्क नहीं है जो ग्लोबली वैलिड हो, आपको हर कंट्री में कंट्री वाइज आपको ट्रेडमार्क कराना पड़े। इसीलिए वाइपो जो प्लेटफॉर्म आया, वो इसीलिए प्लेटफॉर्म आया कि आप सिंगल एप्लीकेशन करके मल्टीपल कंट्री में एप्लीकेशन कर सकते हो। डीजे हैविंग लाइसेंस कैन प्ले सॉन्ग, यस इन फंक्शन, अगर उसके पास में लाइसेंस है तो फंक्शन डीजे ने म्यूजिक राइट, लेकिन नॉर्मली जो डीजे है वो ले लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है, तो बाद में वो प्रॉब्लम नहीं होती। What are the copyright of songs in books, purchase of books, audio type, commercial we are required for the take the permission. What are the used to purchase an audio type other than the commercial are still required. ओनर से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, आपको कॉमर्शियल यूज करते तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप कॉमर्शियल यूज नहीं करते, आपके अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लिटिगेशन आता है तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। आपने ओनर से राइट नहीं लिए तो ओनर फ्यूचर में जाके बोल सकता है कि मुझे डैमेज चाहिए, मैंने ये लिखा है, वो बोनाफाइड नहीं साबित कर देगा कि ये स्टोरी मेरी थी, ये फिल्म मेरा था, ये म्यूजिक मेरा था, तो बाद में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। हाउ इंटरनेशनल राइट आर प्रोटेक्ट, राइट जो प्रोटेक्ट था वो कंट्री वाइज राइट है, कंट्री के एक्ट के हिसाब से प्रोटेक्ट होगा। इन इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड बट द कंट्री समवन यूजिंग सिमिलर ट्रेडमार्क, नहीं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी बात बराबर है कि सपोज कोई ट्रेडमार्क आपका इंडिया में, लोग क्या करते हैं फॉरेन के, आप अहमदाबाद में एक स्ट्रीट है जो या सूरत जाओगे तो सब बिल्डिंग के नाम अमेरिका के नाम पे है। आपने अगर सूरत में जाके देखा होगा रिंग रोड पे तो मैनहट्टन बिल्डिंग, बिजनेस एम्पायर, ये सब नाम अमेरिका की कंपनियों के, अमेरिकी की प्लेस के नाम पे है। तो आपको आपका ट्रेडमार्क इंडिया में है, आप जाके यूएस में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कराते हैं, तो जिन्होंने यूएस में गलती से लिया है तो आप उसके खिलाफ कर सकते हैं कि यू आर हु वाज द फर्स्ट यूजर इन द वर्ल्ड। आपको प्रोटेक्शन मिलता है कि आप अगर इंडिया में पहले यूज करते थे, जब आप यूके में जाके वो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते तो आपका ओरिजिन कंट्री में आपका ट्रेडमार्क कब से रजिस्टर्ड है, वो तब से राइट आपको मिलेगा। तो आप जो उन्होंने फ्रॉडेंटली ट्रेडमार्क लिया है अदर कंट्री में, तो उसको बंद कराया जा सकता है। जैसे इंडिया में मैकडोनल्ड किसी ने यूज करना चालू कर दिया, लेकिन सबको मालूम है कि मैकडोनल्ड यूएस का ट्रेडमार्क है, वर्षों से यूएसए में वो फेमस है। गलती से जब मैकडोनल्ड इंडिया में यूज करेगा तो वो उसकी ओरिजिनल यूजर डेट बताएगा कि वो अमेरिका में कब से, कंट्री ऑफ ओरिजिन में कब से यूज कर रहा था, उस तारीख से राइट करके उसको यहाँ हियरिंग में होगा उसका वो राइट। प्लीज गिव द वेबसाइट वेयर द डिजाइन कॉपीराइट। एक ही वेबसाइट है ipindia.nic.in, www.ipindia.nic.in लिखा। प्लीज गिव द वेबसाइट का हो गया। कैन सीए कैन टेक ऑफ सच एडवाइस करने के लिए मैडम कहीं भी ना नहीं है, आप कोई भी चीज का कहीं भी एडवाइस कर दो, प्रोफेशनली चार्ज ले लो। बात आपको ट्रेडमार्क रूल 2002 को खोल के पढ़िए, रूल 147, 148, 149 और 15, बराबर। ये अपने कहां पे इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम रही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज वेरी एग्रेसिव। उन्होंने वहां पे ट्रेडमार्क रजिस्टर में आपको किसी को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऑथराइज एजेंट हो तो ज्यादा ठीक है। आप एडवोकेट है, कंपनी सेक्रेटरी या
ऑथराइज एजेंट, कंपनी सेक्रेटरी इज एब्सोल्युटली अलाउड। आपको वो एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं है। आपको ट्रेडमार्क अटॉर्नी का काम करना है तो आपको कंपनी सेक्रेटरी को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एडवोकेट को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दे कैन डायरेक्टली गो एंड अपीयर। अपने इंस्टीट्यूट को मैंने भी रिप्रेजेंट किया था, मैंने दीनल भाई वाज द सेंट्रल काउंसिल मेंबर। मैंने बोला था कि जब सीएस इंस्टीट्यूट वहां पे है तो अपने को क्यों डिवाइड किया, पहले ऐसा नहीं था। रूल 48 में ऐसा लिखा है कि जो भी एग्जाम पास करता है वो ट्रेडमार्क का काम कर सकता है। वहां पे लिखा है कि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अनसाउंड माउंट कैन नॉट बी डिवाइडेड एज ए रजिस्टर्ड ऑफ। वो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंसॉल्वेंट है, उसको डिवाइड किया हुआ है, तो वो अटॉर्नी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपको जैसे एडवोकेट, सीए और एडवोकेट का काम कर ही रहे ना, आपको सीओपी नहीं रखना है, एडवोकेट का काम करना, यू कैन डू। करना है। सौरभ जोपरकर टॉप क्लास लॉयर है, दोज डूइंग प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट रिटर्निंग सीओपी। अगर बार काउंसिल के मेंबर बनना है तो आप सीओपी नहीं रख सकते। आप सीओपी नहीं रख सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं। बस बात इतनी है कि आपको वो एग्जाम पास करनी पड़े अटॉर्नी के लिए, आपको तब जाके रजिस्टर करेंगी। और एज ए एडवाइजरी वर्क के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं उसके बिहाफ पे आप अथॉरिटी लेकर जाके अपीयर हो सकते हैं। अथॉरिटी लेटर चाहिए TM48 फाइल करके आप जाके अपीयर हो सकते हैं। कोई अथॉरिटी के साथ में आप केस लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज गिव द वेबसाइट ऑफ कॉपीराइट इम्यूनिटी। Can the CA can? Yes, CA can do the job. We are doing since long. No problem. What are the basis, time, and charging client of such job? Okay, that is very important. That is depend on person to person. Depend on person to person. Normal ranging trademark registration charges, professional fee charging from 10,000 to 25,000. Multinational we are charging 50,000. What the basis of time? Trademark registration. The trademark registered in India and one product in India, and similar trademark registered in UK for other product. Yes, you can do, no problem, no problem, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन का है, नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं आप। देखो ट्रेडमार्क एक्ट आपको वेरी इंपॉर्टेंट, और एक और बात बताना कि ट्रेडमार्क एक्ट में टोटल 45 क्लास है। आपका नाम ट्रेडमार्क में अगर आपने रेडीमेड गारमेंट के लिए लिया है, रेडीमेड गारमेंट के लिए, तो दूसरी क्लास में मशीनरी के लिए दूसरा ले सकता है। आपको सब जगह प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको सब जगह प्रोटेक्शन चाहिए, आपका नाम कोई यूज ही नहीं करे, then you have to apply for all 45 classes where you can charge, professional can charge 4 to 5 lakh rupees. Or many clients want that my trademark should not used by anyone. All Tata, Birla, all these are registered in all 45 classes. So क्रॉस क्लास हो सकता है कि आपका एक क्लास रेडीमेड गारमेंट क्लास 25 में आता है, अनस्टिच 24 में आता है, फूड प्रोडक्ट्स 30 में आते हैं। तो ये क्रॉस हो सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एक दूसरे से नहीं करते, दूसरे क्लास में है तो वो हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चन मैडम? I think these are the questions. One minute, one more question is there. If other asking questions would be helpful if you recall question. Arey, Amit ji, screen is sharing now. We are shared the screen, so you can take the. Okay. Questions तो नहीं है, तो आपको और कुछ अगर members को, you can stop sharing the screen, Anidhi. You can ask any question, no problem. No problem. Yeah. Members can ask the questions if there are any queries, or if more, what is the difference between trademark and? सर मनीष जी ने पूछा था इंस्टीट्यूट का क्या, उसके बारे में बता दो। ICI देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज यूज द एब्रिविएशन ICI सिंस लॉन्ग 1949 से। बीच में हमने जब देवराजा रेड्डी सर थे तो मैं उनको मिला था, मेरी ऑफिस से हम बैठे थे, तब मैंने बोला कि सर इसको करा देना चाहिए ट्रेडमार्क, क्योंकि सर्विस मार्क है और अपना नाम कोई यूज करेगा अपने रोक नहीं पाएंगे। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट ने करवा दिया था, लेकिन गलत क्लास में कराया था तो वो दिख नहीं रहा था, ऑनलाइन पता नहीं चल रहा था। बाद में जब मैंने बात किया तो उन्होंने मेरे को भेजा कि हमने कराया हुआ है, और वो काम अभी आया जब ICI में जो कॉस्ट एंड वर्क इंस्टीट्यूट वो यूज करना चालू किया, तब जाके अपन ने यूज किया कि वो भाई वो नाम यूज नहीं कर सकते, ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और स्टॉप यूजिंग दिस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। Okay.
What is this, Gopal Sharma? What difference between trademark and what is R? Yes, very good. What is TMR and SM? TM means when you apply for the trademark. When you apply for the trademark, you can write TM. TM is the process between getting R. TM to R. जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास में, that you can write R. आपने TM लिखने से ये सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि इस आदमी ने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन की हुई है और इसकी पेंडिंग है. सो अगर मैं करूंगा तो मुझे पता, आपने कोई ब्रोचर देखा और मार्केट में आप धंधा करने की जरूरत है तो आप देखेंगे टीएम किया हो मतलब किसी ने अप्लाई किया हो तो मुझे ये नाम नहीं करना चाहिए, आ गया मतलब किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. और इससे क्या पता मैडम सीमा जी, एक ये अपने को बहुत पता कि आपका अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप साइट पे जाके दे सकते हैं इसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है इसकी. लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है और कॉपी कर रहा तो उससे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ना, कंज्यूमर के राइट डिप्राइव होंगे ना. तो अपने को जरूर है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर है तो सब कुछ उसका अपने को सब कुछ डिटेल मिल जाएगा. टाइम फ्रेम ऑफ अप्रूवल ऑफ ट्रेडमार्क एंड टाइम फ्रेम ऐसा तो कुछ नहीं है. 4 महीने के लिए जो है वो कंपलसरी है आपको जर्नल में. बाकी टाइम पीरियड के लिए तो आप वो जो पीरियड घटा सकते हैं डबल फी देके. ओके, और ऑल द आईपीआर रजिस्टर करने के लिए एक ही वही वेबसाइट है आईपीआर, एक ही गवर्नमेंट का एक ही वेबसाइट एक ही है, वहां ही जाके हम लोगों को सब सिलेक्ट करके बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. आप ट्राई तो करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. लेस स्टैंडिंग, क्योंकि अभी देखो थोड़ा सिनेरियो अलग बात कर रहे हैं तो अभी ई असेसमेंट आ गया है. अपने को कंप्यूटर से उठना नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है. अपने को जो भी रिप्रेजेंट करना है तो अपने को ये भी सेम ट्रेडमार्क भी आपको साइट पे बैठ के करने का, आपको जाने की जरूरत नहीं है. तो आप क्लाइंट के पे डायरेक्ट कर सकते हैं ना. आपको कहाँ ऑथोराइज एजेंट बनने की जरूरत है. आप क्लाइंट का, आपका कोई क्लाइंट आया तो आपका उसकी एप्लीकेशन करते हैं, जीएसटी एप्लीकेशन कर ही सकते हैं ना. अपने सेम ट्रेडमार्क कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. कुछ भी डिफिकल्ट है तो आप हो. हाँ 100%. किसी भी मेंबर को प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम. मनीष भाई वो तो आपने बोला था कहाँ ना है मैडम उसका. थैंक यू. इट टेक नॉर्मली वेरी लॉन्ग टाइम इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलवेज. नहीं ऐसा नहीं है. ये सब सुनी सुनाई बात है, अभी कुछ नहीं है. आई डिड 5000 ट्रेडमार्क, कभी पैसा प्रॉब्लम नहीं आया. कभी आता है तो 100 में से 1-2 तो आएगा ना प्रॉब्लम. पहले ये जो जिसने लिखा ना, ये पहले ऐसा था कि ऑनलाइन नहीं था प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था तो कुछ मिलता नहीं था. यहाँ से बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से सर्च रिपोर्ट निकलवाएंगे. आपको आपका नाम सर्च करना है तो सर्च करने के लिए भी आपको 15 दिन लग जाता था. आदमी वैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि मुझे अभी जो 5 मिनट में हो रहा है उसके ऊपर 15 दिन लगे तो क्या मैं ट्रेडमार्क के काम करूं, मैं क्लाइंट से क्या फील लूंगा. हम तो एडवांस लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गवर्नमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट पब्लिश क्या लिखा, गवर्नमेंट पब्लिश जर्नल फॉर अदर क्लेम इफ एनी ऑप्शन वे टू गेट आवर ओन आईपी एंड वी आर जनरली नॉट ट्रैक. पब्लिश जर्नल आपको देखना पड़े, इसका कोई ऑटोमेशन नहीं है. हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है, हम क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर डाल के ट्रैक कर लेते हैं, उसको ट्रैक कर लेते हैं कि इसके 4 अक्षर मिलते जुलते होंगे, मिडिल अक्षर मिलता जुला होगा तो उससे पता लग जाता है. क्योंकि ब्रांड मैनेजमेंट कॉर्पोरेट्स का करता है तो हम लोग ट्रैक कर सकते, लेकिन आप अपना देख सकते हैं आराम से. क्वेश्चन नंबर 16. मनीष जी बोलिए. हाँ, ओके. Sir, question number 16. It take normally very long time in registration process and always frivolous litigation and raised by professional litigator. Can you share? नहीं, इतना litigation नहीं है. मेरा प्रोफेशनली ऑनेस्टली अगर मैं शेयर करूं तो लिटिगेशन आता है लेकिन 10-20% आता है. तो लिटिगेशन आता आपको फी देके जाता ना, लिटिगेशन आप उसके साथ क्यों बैठ जाते हो. इनकम टैक्स में तो लिटिगेशन होता है, सब प्रोडक्ट में लिटिगेशन होता है. लिटिगेशन नहीं आना अपना काम नहीं. अपना काम है क्लाइंट को कैसे लिटिगेशन से मुक्ति दिलाए, हाउ रिलैक्स कैसे दिलाए. अब क्लाइंट के सर्वे आ गया या रेड हो गई या उसका नोटिस आ गया स्क्रूटनी का तो सीए क्यों टेंशन में आ जाता है. अपना काम तो प्रोटेक्शन करना है, उसको सर्विस देना है, उसको बचाना है, उसके लिए फेयर काम करना है. तो इसमें भी लिटिगेशन आएगा तो लिटिगेशन के लिए जो भी फाइल करना वो करेंगे ना, उसके लिए क्लाइंट ही रहेगा और तो क्या. सर एक क्वेश्चन नंबर 14 भी है, 15 भी है. There is certain sentences like butterly delicious. नहीं, ये आपको ये कॉमन वर्ड रजिस्टर नहीं होगा. आपको आप इसमें कॉमन वर्ड में डिलीशियस कॉमन है, बटरली कॉमन है, ऐसा तो कुछ होना चाहिए. डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए. मैंने पहले भी बोला था, मैं अलग मनीष भाई अलग है, दोनों मेन रखे, मनीष भाई मेन, पुरुषोत्तम मेन. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बोथ. दोनों घर लग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तभी तो नाम का आविष्कार हुआ कि एक आदमी दूसरे आदमी से अलग पहचान बने, एक दूसरे को अलग से जाने. तो वो जरूरी है ना मैडम. तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं होगा, जेनेटिक नाम होगा. मेरा मोबाइल आपका मोबाइल
तो कैसे आप एप्पल लोगे या सैमसंग लोगे या क्या लोगे? तो आपको डिस्ट्रिक्टिव कैरेक्टर तो चाहिए ना, जेनेटिक नाम नहीं चाहिए मैडम, भगवान के नाम नहीं चाहिए। अभी उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि साईं बाबा पे आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, बाबा रामदेव पे आपका पहले हो गया जो हो गया, अभी नहीं करेंगे ये लोग। Purushottam bhai, बोला थे। you said कि you have a software to find out common name का. सॉफ्टवेयर नहीं, वो जो पब्लिश नाम को फाइंड करने का मिलते जुलते, जैसे मैं किसी ब्रांड का, मैंने कंपनी का ब्रांड का काम लिया हुआ है, तो उसके 500 ब्रांड है, तो 500 ब्रांड का मेरा इंडिविजुअल आदमी देख नहीं सकता, तो मैं जर्नल को डाउनलोड करूंगा, उसका टूल है मेरे पास में, उस टूल से मैं पता कर लूंगा कि इसके मिलते जुलते नाम कितने हैं। तो ये software is available in the market. Yes, available in the market. Available in the market. This software, can you? I am not saying you recommend anyone. नहीं, I am not. I am using the जो अहमदाबाद बेस्ड है वेब डेव, उसका नाम iLots करके सॉफ्टवेयर है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। Okay, that is very good. कॉन्टेक्ट दे दूंगा। Okay, okay. अच्छा है, उसे क्या तब मास तो तभी डिटेक्ट कर पाएंगे ना, एक एक नाम 1 to 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, और एवरी वीक है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन कितना हो जाएगा। आप देखो ट्रेडमार्क का काम करना है तो आप देखो ताज ट्रेडमार्क कंसल्टेंसी आगरा की है, पूरे इंडिया का काम देखती है, उसका वॉल्यूम देखो, वो पूरे इंडिया में जर्नल में से पब्लिश होती है, उसको बोलते हैं कि आपका ये कंसल्टेंट है, आपका आप इसके सामने ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपका नाम का मिलता जुलता नाम इसने अप्लाई किया है, आप कभी खोल के देखना, ट्रेडमार्क कंसल्टेंसी ह्यूज कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते पूरे इंडिया को। Okay, great. Good. Very informative session. Members will get really benefited actually. Now we have some time actually. हाँ, ये Because up to 1 we have time. Request Manish ji, they can throw some lights on updates in GST. Yes, Manish bhai is there always. Good. And also, if Manish ji, you can guide the members about the taxation of the taxation point of view, trademark taxation or branded GST point of view, then also it will be benefited to the members. Thank you, Seema madam. I first accept that I have not prepared anything for today's presentation. Just now Seema madam called me, so I'm just discussing. But before that, I should say that all the members who are attending here, we should always look for a newer and newer opportunity as a professional. Because so many years we are practicing in income tax, we are practicing in audit, and income tax. These were the only 2 areas of practice, but slowly and gradually, if you see, the risk in the audit has increased manifold. As far as income tax scrutinies are concerned, now the number of scrutinies are very less, and that too also faceless. That also Seema madam is going to take up that session on faceless assessment, how you can do it. But again, now it is faceless, so now we will have a more and more time, because now we are not required to travel to department, we will save more and more time for us. So I always suggest that you should always go for a newer opportunity. And as far as Purushottam bhai has told that we are saying only trademark, but it is not only trademark. IPR covers various things, not only trademark, but copyright, but patent, design, I don't know, what so forth and so forth. So it's really a good opportunity. And as a chartered accountant, to begin with, we can register our own CA firm's name to start practice and to feel that whatever is there in your mind कि दिमाग में अरे सर बहुत टाइम लगता है, जैसे काफी कुछ क्वेश्चन मैंने देखे, so members ने रखा बहुत टाइम लगता है. So I think 2 years back, 2 or 3 years back, when I was sitting with Purushottam ji, तो ही जस्ट टोल्ड मी आपका इतना अच्छा GMJ ब्रांड है और अच्छा है, कोई भी दूसरा CA फर्म इसको रजिस्टर कर सकता है या कोई दूसरा भी इसको यूज कर सकता है, तो व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर रजिस्टरिंग दैट ट्रेडमार्क ऑफ GMJ. सो वी रजिस्टर्ड, वी अप्लाइड, एंड आई थिंक पुरुषोत्तम में विद इन 7 से 10 दिन में मुझे वो उसका TM हो गया और आपका ओके भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके भी आ गया, एंड मेरे को अभी तो ट्रेडमार्क भी पक्का मिल गया है. So now it is not so tedious job, but the value. So already उन्होंने बता दिया कि स्टार्टिंग में ही पुरुषोत्तम भाई ने बोला है कि लैंड रोवर है या various companies, he has Ola, Uber, whatever he has told. So all these are because of the trade name, because of the IPR, the value has been created. So it's really a good opportunity for us. I'll just share that I have one client. That client
is having only copyright for all the songs in India. So all the music directors and lyricists has given all their right to that single company. So whenever you are going to any hotel for marriage function or any party, so hotel wala bolta hai sir license lagega, aapko music bajana hai to. So that company gives that license, and without that license you cannot play this music anywhere. So at any public place, if you want to play, you have to give the copyright charges to that company. So it's a big opportunity. Otherwise, it won't be possible for individual music director or lyrics to collect the copyright money. So it's really a big opportunity. And another thing that Madam said, that IPR. So again, IPR is again very debatable subject as far as the GST is concerned. So first of all, whether that IPR is a goods or service, where it will fit into. So there are various divergent view. Even if you go to TCS judgment in case of software, whether software is क्या है पता नहीं, इंडिया में रजिस्टर नहीं होता, ऐसा कुछ पुरुषोत्तम भाई ने बोला. But otherwise it is registered, it is elsewhere in the world you can register that software. So software is also IPR. Correct, Purushottam bhai? Yes, 100%. So सॉफ्टवेयर विद इंस्ट्रूमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन खाली सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए आपको. डिबेटेबल. Yes, it's debatable. तो वो बोलते हैं सॉफ्टवेयर के साथ कुछ हार्डवेयर होगा तो उसको आप रजिस्टर कर सकते हो. तो जब उसके साथ कुछ भी हार्डवेयर जुड़ गया, तो if you go to the TCS judgment, then it says it become goods. Good. But if you are selling software as it is and it is customized software, then again it is debatable whether it is service or goods. So depending on that, your GST rate or maybe your place of supply, everything will differ. So I got one interesting case. The company is into the music. So they came to me for GST opinion. So they said ki we have a right and we have created certain music, religious music. And if you download from our site, then you have to pay certain money. So whether it is a goods or service. So then we analyze and we said that it is a service. Same music, Purushottam bhai, they are saying that they are recording on a music, some instrument, radio type का, उसको क्या बोलते हैं आजकल वो, उस पे रिकॉर्ड आता है नाम दिया. तो बोले उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो जिस पे रिकॉर्ड करेंगे इक्विपमेंट, the cost of that music equipment on which it is to be recorded is maybe 1,000 rupees, but we are going to sell at 6,000 rupees. The value has been created because of that music downloaded in that. So whether it's now goods or service. So again we analyze. So once you are giving that IPR along with some goods, some material, then it's become a goods. Goods. And as far as promotion of religious activities are concerned, it is exempt, and religious services are exempt under service tax, GST. But goods are not exempt under GST. The religious trust selling any goods is not exempt. So now if they are recording that music on some instrument, then it's become a taxable item. Otherwise, it is downloadable from the website, and whatever charges they are recovering, all these are exempt supply. So this is how the difference is there as far as IPR is concerned. Another thing what Seema madam has, we have discussed yesterday in great detail, that from 1st October 2020, e-way bill is going to be mandatory. It is supposed to be, not e-way bill, e-invoicing, which was supposed to be mandatory from 1st April 2020, but their system was not ready. So they have said that now we are differing and it will be mandatory from 1st October 2020. Previously, it was mandatory for the person or the SSCs who is having aggregate turnover of rupees 100 crore or more than 100 crore, and they are having a B2B supply. Now that
limit has been increased from 100 crore to 500 crore. So the companies whose aggregate turnover is up to 500 crore or more than 500 crore rupees in a year now require to have a mandatory invoicing. So you need to integrate that in your ERP system, SAP system, or whatever accounting system, billing system you are following, because it's going to be mandatory, and without that, whatever invoice you are issuing will not going to be valid as far as the GST is concerned. So that you have to keep in mind, and it's not there you have to generate invoice in some format. So already there under the excise law, under the service tax law, and now in the GST law also, department has done away with any format. They are saying these are the requirement on the invoice has to be there, and you can have in your software integrate that. As far as this now e-invoicing is concerned, invoicing details, certain details they have to upload on the government website, and that invoice reference number IRN will be generated, and that IRN has to be there on your invoice. So once you generate this e-invoicing, so they have not come out with the clarity, then in that case also e-way bill is required or not for transfer of goods. In my view, the e-way bill is for tracking that whether goods is moving properly or not, and whether invoice has been generated or not before the dispatch of goods. Once e-invoicing is mandatory, that is my personal view. As of today, no decision has been taken by government. But in future, they may done away with the e-way bill concept, and they will continue with this e-invoicing. And today they are giving e-invoicing only for SSCs having aggregate turnover of rupees 500 crore or more. But gradually they will reduce that limit from 100 to 100 crore, 500 crore to 100 crore, and then slowly and gradually they will take within the ambit of this e-invoicing each and every SSC. So it is very important that you should go through the provision, you should understand, you should guide your client, and because the software also needs some changes, and the SSCs whose turnover are more than 500 crore, unke liye to sirf ek hi mahina bacha hai. So time is very, very, very short. So you should update your client on this. This is going to be mandatory, and you are required to follow. Otherwise, your business will stop on 1st October 2020. That is the first thing, very important. So I thought I should share with you. Another is that we know that once our SSC, our supplier will file his GSTR1, then whatever, if he has disclosed that my GST number in his GSTR1, then the credit will come in my GSTR2A. And Rule 36, Sub Rule 4 says that the item which is appearing in your GSTR2A plus 10% only you can take the credit. So if some item is appearing 100 rupees only as a credit, so maximum you can take 110 rupees as a credit. But if you go to section 16 subsection 2 of the GST Act, CGST Act, which says that you will get the credit once you have an original tax invoice with you. Second, you have received the goods or services. Third is the supplier has made the payment to the government. And fourth, you have claimed the same in your return. So as of today, the GSTR1, what my client is, my supplier is filing, it is not linked to his GSTR3B. So he may disclose his liability as 1 crore rupees in GSTR1, and in 3B he may disclose as 50 lakhs, or he may not file GSTR3B also, or he may disclose some lesser figure. All this permutation combination is possible as of today. So it is impossible for any SSE who is claiming GST credit to prove that the supplier has paid the GST to the appropriate government. And there is no mechanism as of today to find out the same. When GST law became a mandatory and they planned to come out with the GST law, the original scheme was a supplier will file GSTR1, the credit will come in your GSTR2A. From there you will accept, modify, reject the credit.
and that figure will come in your GSTR2. Once you will file your GSTR2 and you will claim that credit, then only you are liable, you are able to file the GSTR3. So there was linkage between 1, 2 and 3. But in the current scenario, since last 3 years, we are saying that there is no there is no coordination, there is no linkage between these 3 forms. And government felt that necessity that there has to be a linkage between 1, 2A and 3. So now they have come out with form GSTR2B, which is auto-filled, and whatever details are coming in your GSTR2A will be pulled in GSTR2B, and there you can make some changes if some credit is there and that goods has not been received. Suppose the goods has been dispatched, maybe for example, take on 20th March 2020. But you received on 1st June. So you are able to take the credit on 1st June 2020, not the invoice has been raised. But that will come in your GSTR2A in the month of March. So suppose when GSTR2B will be effective, so then it will come in your GSTR2A se 2B mein aayega. Then you can defer ki okay, I have not received that goods or services, so I will take this credit in the next month. And that you will inform to the department. And now your GSTR1, 2B and 3 will be linked. Then now you can say that, surely say that your supplier has made the payment to the appropriate government and government cannot deny you to take the credit. So that is very important provision. You should go through that GSTR2B provisions and e-invoicing provision, which is very much required. That is the one thing. Another is GST audit and annual returns are concerned. The due date are 30th September 2020. And till now we have not applied for any extension and as from the institute side, and we were not planning to ask for any extension as far as the GST annual return and audit are concerned. So try to complete this audit and annual return at the earliest as possible. So Nidhi has come out with some more questions. So it means that I should not now stop, and Purushottam Bhai can answer all the questions now. Over to you, Purushottam Bhai. You can. One question is for you also, Manishji. Yes, no problem. For example, our registered brand Sky is anybody filed with the similar name, so there is no way to get alert from authority. There is a chance to miss the public journal. Yes, absolutely. Authority alert नहीं करेगी, आपको ever रहना पड़ेगा. आपने प्रॉपर्टी ली, आपने मकान लिया, तो आपको ताला चाबी साथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा. आपने आपका प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया है, अलर्ट नहीं है, ऐसा सिस्टम अलर्ट नहीं है. हाँ, इतना चेक एंड बैलेंस है कि सेम नाम अप्रूव नहीं करेगी, ऐसी सरकार के इंस्ट्रक्शन है. आईपीआर पॉलिसी है कि आपके पास जो ट्रेडमार्क नया आया है वो एक्सिस्टिंग डेटाबेस के साथ मैच करते हैं. व्हेन एक्सेप्टिंग दी ऑर्डर, जर्नल में पब्लिश करने के लिए जो ऑर्डर पास करते हैं, जिसको हम एबीए बोलते हैं, एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, तो वो एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि सेम मिलता जुलता नाम नहीं करें. इसके अथॉरिटी इफ देयर आर चांसेस टू मिस द पब्लिक जर्नल एंड वी डू सेम, तो अप्रूव नहीं करते, अभी भी नहीं करते, वो लोग सेम नाम नहीं करते. चांसेस है, फिर भी 19-20 हो तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए. बाकी सेम नाम तो अप्रूवल नहीं होगा, नहीं होगा. वेल नोन नेम भी अप्रूवल नहीं होंगे. आप ऑलरेडी है तो फिर वो नहीं देंगे. हाउ आईपीआर वैल्यू while selling the business. IPR valuation के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है. वैल्यूएशन itself is a big topic. How you will IPR valuation के लिए वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है. आप देखो कि आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, आपका आज का टर्नओवर से इस ब्रांड को लेके कितना टर्नओवर रहना, हाउ विल आर गोइंग टू अर्न. फुल मेथड इज देयर, ऑल वी आर अवेयर दैट. नेशनल एंथम ऑफ ICA मोटो प्लेड बिफोर द स्टार्ट सेमिनार बाय स्टडी सर्कल. नेशनल एंथम ऑफ और ICA मोटो प्लेड बिफोर स्टार्ट सेमिनार बाय स्टडी सर्कल. That worries like a better guide. Purushottam Bhai, he is asking query to you as a past secretary of WIRC, not as a today speaker. So you can answer that. It should be around a national anthem. जब आपको नेशनल एंथम वो घर पे कभी भी पिक्चर देखते हैं तो खड़े होके इंस्टीट्यूट का रिस्पेक्ट करने के लिए
क्या problems है? It should be allowed. And my opinion. And ICI Moto, we are not playing now in study circle because it is not possible to stand up and all these things. So we are now started playing ethics video. That's No, okay. it's okay because for the virtual meeting they have given That's the okay. Because we cannot stand up and respect it. Yeah. Right. The Christ is providing service to giving blessing and giving his follower to various subjects. Flower gives money to Christ. Whether this is Maniji. Questions for Manish, two questions. So पहले तो पंकज जवाहर जी ने पूछा है, priest is providing services of giving blessings and guiding his follower for various subjects. Follower give gift or money to priest. Whether this is income in subject to GST. First, what we have to understand is, in my view, is very Apply of services. whether it is a consideration. Whether priest is giving Pankaj ji, whether priest is giving a blessing because he will get some money. So there is no quid pro quo. So आप कोई जवाहर जी आप कोई ट्रस्ट में गए और वो ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, तो और आपने बोला अच्छा ठीक है, आई विल गिव यू सम डोनेशन, so you gave some donation to that trust. Whether it is a service by the trust, no, it is not a service by the trust. Same way, in my view, the priest is giving blessings not because he will get some money. ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं भी दोगे तो भी वो आपको आशीर्वाद देने वाला है. आप मंदिर में जाओगे और पैसा नहीं चढ़ाओगे तो भगवान आशीर्वाद नहीं देगा या प्रिस्ट आशीर्वाद नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है. So according to me, it is not a service at all. And he is showing this income as a professional income. So I am not expert on income tax, but I think Jayesh Bhai is here, Jayesh Shah, who is attending, who is expert in income tax. He will be the right person to answer, first of all, whether this income shall be taxable under Income Tax Act or not. So I request if you can unmute Jayesh Bhai, and Jayesh Bhai will answer on this. Till then, I will go to another question. Aditya Maheshwari ji ने पूछा है कि यूडिन जनरेशन का पीरियड होने वाला है क्या? आदित्य जी, I am a chartered accountant and I am not क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिष नहीं हूँ मैं, so I can't comment on the future. So as of today, there is no such discussion on a council table to extend this time limit for यूडिन generation. So you presume that it is not going to be extended, and accordingly you should start working the same. And in my view, latest by 15th of the September, you should generate UDIN for the company's audit for the year 2021. Otherwise, extend for the annual general meeting. You can apply for the extension of annual general meeting. So, yes, correct. Purushottam Bhai has rightly said that you can apply for the extension for AGM, then you can defer this UDIN generation also. And in my view, due to COVID-19, MCA may take a lenient view and may grant the exemption. May possible, but I am not sure. And another question is whether e-invoicing less than 500 can volunteer want to adapt early is possible. Let the system should start, then only I will be in a position to comment how the system work. Whether the system will work for the person who are for them for whom this is mandatory. उसी को अगर पूरा नहीं पढ़ रहा है तो शायद वॉलंटरी वो नहीं भी करे. So we have to wait and watch. Damania ji is asking if turnover is less than 1.5 crore, file GSTR 1 on quarterly basis. Now, how one would take ITC credit for monthly 3A or 3B since person who is filing GSTR 1 credit and GSTR 2A will appear? So I understood your query is related to GSTR Rule 36 sub Rule 4. So I have already covered in this study circle also only, I think in the month of June or July, the specific 2-hour session on ITC. And in that I have covered, Damania ji, this provisions in great detail. The link is there available with you, and it is the video is there on the YouTube channel of JB Nagar. For detail, you can go there
But again, that what questions you are raising is the difficulty is there, and both the views are possible, because if you read the wordings of 36.4, which says that the credit shall be availed if it has been uploaded, required to be uploaded as per section 37, and all that reasons has been given. As per that section, now this is supposed not to be uploaded on a monthly basis. It has to be uploaded on a quarterly basis. So one view is possible that you can take the credit of quarterly. But again, I will suggest not to go for that. You should take the credit in case of quarterly also, once you will get the credit in your GSTR 2A. But otherwise, it will be very, very, very difficult to prove after maybe 2 years, 3 years, 4 years, when department will come and they will ask कि सर आपने इसका क्रेडिट लिया है, whether he was first of all was there in 1.5 crore during that period, and again in 1.5 crore that month quarterly is an optional subject. It is at the option of your supplier. He may choose to file on monthly basis. So whether he has chosen to file on monthly or quarterly, you will not come to know. I will suggest that the credit which is appearing in your GSTR 2A, only on that you should talk about that. And as far as Rule 36.4 is concerned, you all know that in Gujarat High Court has admitted a writ petition for stay of Rule 36.4. पुरुषोत्तम भाई गुजरात में बैठ के, अहमदाबाद में बैठ के काफी कुछ जजमेंट जीएसटी के लाते रहते हैं, and it is expected that the judgment may come on Rule 36.4 in next week. It is expected, but let's wait. Whether courts are not working properly, so whether they will come out on monthly basis this week or maybe later than in the next month, definitely it will come out. So thank you very much from my side. Now, Jayesh bhai, if you can throw some on that priest query. Yeah, thank you for giving me opportunity, Manish bhai. According to my view, the income which priest is receiving is if it is not a professional income, first of all, because it's not a profession recognized under 44 AF, but if it is considered as a business, because it is a regular activity which he is doing and he is getting the income, so it can be considered as a business income. Otherwise, it can be considered as income from other sources. That is a more appropriate according to me, because it is a gift he has received, because he is not, it is not a predetermined price he is giving the services. So it is under section 56, it is an income from other sources, which is more appropriate to offer as an income, and then he can avoid even GST issue on that. That is what my view is. It is subject to check again, but this is what my view is. Okay, thank you. Thank you, CA Purushottam Khandelwal ji, for the wonderful session. And thank you, CA Manish Gadia ji, for giving updates in GST, and also Jay Shah for his appearance, for giving solving income tax query. I now request CA Krishna Kumar ji to give a vote of thanks to the speaker. Thank you, Seema ji, for giving me this opportunity. Today's topic, professional opportunities in IPR, by CA Sri Purushottam Khandelwal ji, our past WIRC secretary. He had very well covered the topic, and the members have been benefited by today's topic, and our own Western India Regional Council member Manish Gadia ji had also given his thought and his talk on the queries of the members on the subject. On behalf of JB Nagar CP Study Circle, I propose a hearty vote of thanks to today's both the speakers, Manish Gadia ji and Purushottam Khandelwal ji, for today's wonderful session. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you.